أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. کے ساتھ طے ہو جاؤ. کام کرنا ہے تو یہ چیز پہلے تیار کرنی پڑے گی. مہینے کے 3 دن کو اس کے کون سے ہفتے میں لگیں گے وہ ہفتے بھی طے ہو جائیں. پہلے یہ ہمارا گراؤنڈ پہلے مضبوط ہونا چاہیے. یہ بنیاد چیز ہے ہماری. یہ ماڑکھا ہے، ماڑکھا ہمارا گجراتی میں کہتے ہیں. یہ ماڑکھا ہمارا ایک دم پورا ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. اور اس ماڑکھے میں جس ساتھیوں نے اپنے آپ کو فٹ کیا یہ تمام اس پر جمنے والے ہونے چاہیے. محلے میں بچے کھیلتے رہتے ہیں تو محلے والے پریشان ہوتے ہیں. کوئی ان سے کہ جاؤ گراؤنڈ میں جا کر کھیلو. لیکن اگر محلے کے باہر گراؤنڈ ہی نہیں ہے تو وہ کہاں جا کر کھیلیں گے؟ ہمیں اپنے محلے میں چل پھر کر چلے 4 مہینے 3 دن کی تشکیل کرنی ہے. لیکن لے کر چلنے والوں نے اپنے سال بھر کا پہلے سے اپنا ایک نظام متعین نہیں کیا ہے تو تشکیل کرنے کے بعد یہ 4 مہینہ چلہ 3 دن جانے والوں کو ہم کس کے ساتھ جوڑیں گے؟ اس لیے مسجد اور جماعت تو پہلے اپنا ایک نظام سالانہ ماہانہ متعین کر دیں ہر ساتھی، اور پھر اس پر جمیں. اس پر کیا کریں بولو؟ جمیں. اللہ سے اس کو مانگے، استقامت کو اللہ سے مانگے. استقامت تھوڑی مشکل چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے شیبتنی ہود و اخواتھا، کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. آپ کی داڑھی مبارک میں، سر مبارک میں چند بال سفید ہو گئے تھے. کیوں کہ اللہ نے اس میں حکم تھا، اپنے نبی کو دیا تھا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے بتایا گیا ہے ویسے اس پر جمے رہو. کہ بات تو جمنے پر بنتی ہے. بات کس پر بنتی ہے؟ جمنے پر. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ہر عمل پر جمایا. نمازوں پر اتنا جمایا، فرائض کے علاوہ نوافل کے اندر کے پیر مبارک پر ورم آ جاتے، لیکن آپ نے اس کو ترک نہیں کیا. امی جان نے فرمایا بھی کہ آپ بخشے بخشائے ہیں، تو جواب دیا فلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں. زندگی کے آخری لمحے تک آپ کی استقامت باقی رہی. یہ ہم سب کے لیے میرے دوستو بھائیوں سنت اللہ کے نبی کی جمنا. اللہ دیتا ہے نا، وہ جمنے پر دیتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے خیر العمل ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جس پر پابندی کی جائے. جس پر کیا کی جائے بولو؟ پابندی کی جائے. کبھی کیا کبھی نہ کیا، جوش جذبات میں آ گئے، جذبہ بنا تو کر دیا، جذبہ ٹھنڈا پڑا تو ہم بھی ٹھنڈے پڑ گئے، عمل کو چھوڑ دیا. وہ عمل زندگی بدلنے میں مؤثر نہیں ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے کہ 1000 گیلن پانی آپ کسی پتھر کی چٹان پر بہا دیں، بہہ جائے گا، تھوڑی دیر میں خشک ہو جائے گا. چٹان جیسی خشک تھی پہلے ویسے واپس خشک ہو جائے گی، پانی کا کوئی اثر نہیں دکھے گا. لیکن یہ 1000 گیلن پانی کو کسی ٹنکی میں آپ بھر دیں اور اس کے نیچے ایک سوراخ کر دیں، اور اس سوراخ سے قطرہ 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 ٹیپا ٹیپا پتھر کی چٹان پر گرتا رہے، تو کیا ہوگا بولو؟ کچھ عرصے کے بعد اس پر سوراخ کر دے گا. کیوں؟ استقامت، پابندی. استقامت اور پابندی. ہمارے مسجد اور جماعت کے ساتھیوں کو اپنی سالانہ ماہانہ ترتیب طے کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا ہے. او سونے والو، یار تم مراقبہ مت کرو، ورنہ سب سے زیادہ کم نیند تو ہمارے اس قافلے کے ساتھیوں کی ہوتی ہیں. تمہارا دوسرا دن ہے، ہمارا 10واں دن آج. سو مت. بہت سمجھداروں کا یہ مجمع ہے. مراقبہ یہاں نہیں ہے. ہمارے قاری ظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے آدمی کان سے نہیں سنتا ہے، آنکھ سے سنتا ہے. کس سے سنتا ہے بولو؟ کتاب پڑھنے والے کی طرف، بات کرنے والے کی طرف آدمی دیکھتا رہے گا تو کان ادھر لگا رہے گا، اور اپنی نگاہوں کو نیچی کر دے گا. نہیں، کان تو کھلے رہیں گے. کان تو کیا رہیں گے بولو؟
लेकिन बात ऊपर चली जाएगी। सो मत, और कोई सो रहा है तो इसको मोहब्बत से उठा दो। करोगे? कौन करेगा ऐसा? जब सोओगे हमारी मस्जिद और जमात इस पर अपने आप को जमावे। हालात आते हैं, तकाजे भी आते हैं, घरेलू तकाजे हैं, सामाजिक तकाजे हैं, कारोबारी तकाजे हैं। बाद मरतबा अपनी तबीयत समझते हो थोड़ी 19-20 होती है तो, लेकिन आदमी जब जमा देता है अपने आप को तो अल्लाह ताला शानू की तरफ से इसकी नवाजिश का फैसला हो जाता है। कबूल कर लिया जाता है अल्लाह ताला शानू की तरफ से। फिर वो सैकड़ों हजारों की हिदायत का जरिया बन जाता है। इस राह में जिसने जो पाया है वो इस्तिकामत के रास्ते से पाया है। इस राह में जिसने जो पाया है वो कैसे पाया बोलो? इस्तिकामत के रास्ते से। इसलिए शुरू साल में हमारी मस्जिद और जमात अपनी सालाना माहाना तरतीब बना, रोजाना मेहनत करने का वक्त तय कर ले। और सबसे अच्छा वक्त सुबह का वक्त है। सबसे अच्छा वक्त क्या है बोलो? सुबह का वक्त। क्या फायदा इसमें? आप भी फ्रेश हैं, नींद 6-8 घंटे की पूरी करके आए। आप जिनके पास जाएंगे वो भी फ्रेश है, तरोताजा है, वो भी क्या है बोलो? फ्रेश है। आप इनके घरों पर जाकर बैठकर दीन की बात करें, ईमान की बात, आखिरत की बात, जैसे हमारे मोइन भाई ने सुना है, और उस आदमी की तश्कील करें। उसकी जो दीन की सतह है उसके अगले सतह की तश्कील करें। एक आदमी 5 वक्त नमाज का पाबंद है, लेकिन मस्जिद और जमात, तालीम 3 दिन इसमें इसकी शिरकत नहीं है। इसको तरगीब दो 3 दिन की, मस्जिद की तालीम की तरगीब दो, इसके घर में तालीम की तरगीब दो, अगली सकातियत से जिसकी जो सतह है। बाद लोग जुमा के नमाजी होते हैं, 5 वक्त मस्जिदों में नहीं होते हैं, हमको मालूम है। बाद लोग पाबंद है, बाद लोग पाबंद नहीं होते हैं, 2-4 पढ़ लेते हैं, 2 पढ़ी 3 पढ़ी, फजर में गायब, इशा में गायब। चूंकि हम बस्ती के रहने वाले हैं, मोहल्ले के रहने वाले हैं, इस आदमी की दीनी हालत और इसका दिन किस कंडीशन में है हम पूरे इससे वाकिफ हैं। तो उस आदमी की जो अगली सतह है उस अगली सतह पर लाने की बात करो। खड़े खड़े कोई बात नहीं करेगा, बैठकर घरों में बैठकर बात करेंगे। छोटा घर है, मजबूर न करो, घर के बाहर औसली के अंदर कुर्सी डालकर, कपड़ा बिछाकर, खाटला डालकर इसके सामने दीन की बात की जाओ। बात करने वाला बात भी जरा बड़ी आवाज से करे, ताकि घर की खवातीन भी इसको क्या करें बोलो? सुने। कोई भी औरत हो, आप इसके शौहर को घर में बुलाकर अलग से आप बात करेंगे ना, तो ये औरतें जो होती है ना, ये हमेशा क्या होती है बोलो? वहमीली तबीयत की होती हैं। कैसी होती हैं? वहमीली तबीयत की औरतें होती हैं। ये क्या समझा रहे इनको, क्या बात है? वो घर में झाड़ू करती होगी, पोता करती होगी, साफ सफाई करती होगी, किचन में खाना पकाती होगी, है ना, पतीली में इसका चमचा चलता होगा, हाथ चलता होगा, कान आपकी तरफ होगा। क्या हो रहा है? आप आहिस्ता आहिस्ता खुसुर फुसुर वो एकदम डाउटफुल केस हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा बोलो? एकदम डाउटफुल केस हो जाएगा। और आप बड़ी आवाज से बात करेंगे ना, तो वो भी ध्यान तवज्जो के साथ सुने। कोई खानगी बात तो है नहीं, हम तो वो बात कर रहे हैं जो उसकी भी जरूरत है, उस घर की खवातीन की भी जरूरत है। जब सुनेगी तो उसके दिल के अंदर भी अल्लाह ताला क्या करेगा बोलो? हमारे बात की अजमत और उसका असर पैदा करेगा। हम लोग मेलबोर्न में से एक मरतबा तश्कील कर रहे थे, एक सोमालियन भाई को हमने तैयार कर लिया, हमने इससे वसूली मांगी, वसूली देते। उसने कहा पैसे नहीं मेरे पास। मैंने कहा कुछ तो दे। वो हमारे साथ एक दूसरा साथी रहबर था। मैंने कहा कितना डॉलर तुम लेते हो वसूली में? कहा 50। मैंने कहा 50 दे दे यार। चल मैं 40 में नीचे उतरा, भाई 40 दे दे, चल 30 दे दे। दुकान पर ग्राहकों के साथ करते हैं ना ऐसा वो, लेकिन वो किसी बात पर तैयार नहीं हुआ। तो हम सोचे रहे यार कि क्या करेंगे। इतने में इसके घर की छोटी सी बच्ची इसकी अम्मी का पर्स लेकर आई और उसने
इंग्लिश में एक रहबर से कहा कि इसमें पैसे हैं, निकाल दो। तो मैंने वो अपना हमजा था हमारा रहबर, मैंने उससे पूछा क्या मसला है? बोले आपने जो वसूली की बात और ये तश्कील की बात कही, ये पीछे बैठे सब इसकी बीवी सुन रही है। जब इसने ना कहा तो इसने कहा कि इसको ले जाओ, मैं पैसे देती हूँ, वसूली मैं देती हूँ। तो मैंने कहा पर्स इससे खुलवाओ और अपने $50 इसके हाथ से वसूल करो। घरों में बैठकर बड़ी आवाज से थोड़ी बात करने में जब औरतों की समझ में बात आ जाती है तो वो हमारे काम के अंदर क्या बनती, बोलो, मुआविन बन जाती है, मददगार बन जाती है। चाहे छोटा घर हो बड़ा घर हो, बैठकर बहुत इत्मीनान से 20 मिनट 25 मिनट बात करें, खड़े खड़े बात न करें। दीन की बात सस्ती नहीं है। आप मैं अपने बेटे बेटी का रिश्ते की बात लेकर जाते हैं तो घर के बाहर खड़े खड़े बात करते हैं। अरे बोलो, कोई कारोबार किसी से करना है तो इसके घर के बाहर डीलिंग जो होती है वो खड़े खड़े होती हैं, बैठकर इत्मीनान से होती है। दीन की बात बहुत अजमत की बात है, अल्लाह और उसके रसूल की बात है, बहुत कीमती और बहुत अहम बात है। ये इतनी अहमियत ही के साथ बैठकर समझी जाएगी और समझाई जाएगी। तो हमारी मस्जिद जमात के साथी सुबह की मुलाकातों को पसंद करें। सुबह में लोग फ्रेश होते हैं। आप मगरिब बाद इशा बाद मुलाकात करेंगे तो हफ्ते के 2 गश मगरिब बाद आप करते हैं, है ना? अच्छा, आम तौर पर हल्के वाले अपना कोई मशवरा हफ्ते का करेंगे, वो असर से इशा में करते हैं। आपके यहाँ शब गुजारी तो है नहीं, हफ्ते के 3 दिन तो इसी में चले जाएंगे। आपको मिलेंगे कितने दिन बोलो, है ना? 4 दिन मिलेंगे। अब जाहिर बात है, एक बात कही जा रही है हमारे बुजुर्गों से बरसों से कि हमारी मस्जिद और जमात की मेहनत की तरतीब यह हो कि हर मुसलमान के पास महीने में 2 मरतबा हमारी इससे क्या हो जानी चाहिए बोलो, मुलाकात हो जानी चाहिए। 1 महीने में 2 मरतबा इसके कान में अल्लाह रसूल आखिरत की बात पड़ जानी चाहिए, ताकि यह आदमी अपने ईमान और अमाल के एतबार से चौकन्ना रहे। ये हमारी मुलाकात का जो तरतीब होगी ना, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे बोलो, नमाजी बढ़ेंगे, तालीम में बैठने वाले बढ़ेंगे। और आपने माशाअल्लाह पहले से अपनी माहाना और यौमी या सालाना तरतीब बनाकर रखी है। आपने तश्कील की किसी की 3 दिन की, ये जुमा को जमात जा रही हैं, हम जा रहे हैं 3 दिन में, आप हमारे साथ तैयार हो जाओ। नहीं यार, ये जुमा को तो मेहमान आने वाले हैं, जुमा को तो मुश्किल है, आप कहो तो अगली जुमा चला जाऊंगा। तो हमारा हफ्ता पहले से दूसरे साथियों का अगले हफ्ता तय है। 1 महीने के 4 हफ्ते हैं, है ना? अगला हफ्ता तय हमारे किसी साथी का, तो वो आदमी के लिए क्या हो जाएगा बोलो, उसमें निकलना आसान हो जाएगा। उसने तैयारी बताई, लेकिन उस अगले हफ्ते में हमारा लेकर चलने वाला कोई आदमी नहीं है। तो फिर वो आदमी तैयारी बताएगा, नाम खाली कागज पर लिखेगा, हम इसको वसूल करने की कोई तरतीब हम नहीं सोचेंगे। क्यों? जमात लेकर चलने वाला भी कोई नहीं है। तो इसकी 3 दिन इसका चिल्ला इसी तरह महीनों में, फरवरी में, अप्रैल में, रमजान बाद, बकरीद बाद, मुहर्रम बाद, हमारे साथियों की जो माहाना तरतीबें, सालाना तरतीबें चिल्ले 4 महीने की बनी हुई है। चिल्ले की तश्कील भी आसान हो जाएगी। वो ये अगले महीने में ना बोलता है, 2 महीने के बाद बोलता है, मंदी में बोलता है, चौमासे में बोलता है। चौमासे में हमारी जोड़ियां हैं चिल्ले की जमात की, 4 महीने की जमात की, तो उस खाने में क्या हो जाएगा बोलो, फिट हो। जमात निकलनी है 6 महीने के बाद, लेकिन मेहनत अभी से हो रही है। मोहल्ले में 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, 6 जोड़ी, छोटा बड़ा मोहल्ला है, कम ज्यादा मस्जिद और जमात के साथी हैं, और रोजाना मुलाकातों का निजाम है। तो रोजाना क्या होता जाएगा बोलो, 3 दिन की जमातों में नाम बढ़ते जाएंगे। हर हफ्ते में जमातें बन रही है चिल्ले की 4 महीने की, साल भर में आपकी 4 जमात चिल्ले की, 5 जोड़ी है 5 जमात, 8 जोड़ी है 8 जमात। हर जमात के अंदर अभी से आपको साथी मिलते जाएंगे। जमात तो जानी है अगस्त में, एक आदमी अभी नियत करता है अगस्त वाली जोड़ी के अंदर इसका नाम लिख दिया, भाई लिखो ये अगस्त में रात को दिन में मुलाकात करने गए थे, वो कह रहे हैं कि भाई मैं जुलाई के बाद फारिग होऊंगा, आप अगस्त में चिल्ला जाऊंगा, अगस्त में 4 महीने जाऊंगा। तो आसान है, आसानी के साथ कम मेहनत में हर महीने की 3 दिन की जमातें और सालाना चिल्ले की जमातें मस्जिद के अंदर बगैर शोर शराबे के, बगैर हंगामी तश्कील के। एक तो होता है ना, एक आदमी तैयार होता है हंगामी तश्कील के लिए निकलो,
फिर ये नहीं देखा जाता है कौन किस मस्जिद का है। इस मस्जिद में 6 तैयार हुए तो दूसरे हल्के की मस्जिद से दूसरे 6 ले आओ, चंदा करो। क्यों? जिम्मेदार जा रहा है, इसके साथ जमात बनानी है। अब मेहनत नहीं हुई है, हंगामी तौर पर 2-4 आदमी तैयार हुए, हल्के के जिम्मेदार साथियों ने देखा मजबूत आदमी है, खाली 4 आदमी इसके साथ चिल्ले में इसकी मस्जिद के तैयार है, चलो हंगामी मेहनत करने के लिए पूरे हल्के में चलो फिरो। तो 2 यहां से चंदा करके लाए, 1 यहां से चंदा करके लाए, 3 यहां से चंदा करके लाए, 11-12 तैयार हो गया और जमात का पर्चा बनाकर भेज दिया। क्या हुआ कि जमात बन गए। भाई होनी तो ये चाहिए थी, इस जिम्मेदार के साथ इसकी मस्जिद की पूरी जमात बनती। और ये कब होती? इसको जिस महीने में जाना है उस महीने का अनुमान बनाकर मस्जिद और जमात घर घर की मुलाकातों में, बैठकों के अंदर क्या करते बोलो? तशकील करते। इसके निकलने का 1 महीने का वक्त बाकी होता है ना, तो इसके खाते में कितने आदमी होते बोलो? 20, 22, 25 नाम होते। भाई अगस्त में जा रहे थे, मुलाकातें साल भर की आई, माशाल्लाह अगस्त में जाने वाली है, सब लोग हैं, चलो इनकी मुलाकातें कर लो, कह दो भाई अगस्त में जाना है, कंफर्म कर लो, इनसे बैठकर वसूलियां ले लो और किसी वक्त में मस्जिद के अंदर जोड़ लो और सबका खर्चे का तफक्कुद करके पर्चा बनाकर रुख मनवा लो ताकि जमात की टिकटें बन जावे और इसके निकलने का निजाम पक्का एकदम पक्का हो जाए। ये तरतीब होती है मस्जिदों में जमातें बनाने की। हालांकि अपनी चिल्ले 4 महीने की जमातें, ऐसे महीने की 3 दिन की जमातें, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते, अगले हफ्ते नहीं तो इसके अगले हफ्ते। कोई आदमी मेरे भाइयों अपने आप को बाकायदा नहीं कर सकेगा। वो जिस हफ्ते में जाने की तैयारी बताएगा, हमारी जोड़ियां पहले से बनी है माहाना तरतीब के साथ, तो हर आदमी उस तरतीब उस हफ्ते की जो जोड़ी बनी हुई ना, इसके खाने में फिट होता जाएगा और उसकी जमात हफ्ते पहले 15 दिन पहले बनती जाएगी। 4 दिन पहले 3 दिन की तश्कील करने नहीं निकलना पड़ेगा। और एक आदमी ने 15 दिन पहले 20 दिन पहले 3 दिन जाने का तय करके रखा है और आपने इसका नाम लिख के रखा है। अब मुलाकातों के अंदर इसकी वसूलियाबी भी आसान हो जाएगी। भी आपने तय किया था चौथा हफ्ता, देखिए माशाल्लाह चौथे एक ही हफ्ते जमात है, फारूक भाई लेकर जा रहे हैं, हनीफ भाई लेकर जा रहे हैं, आपको इसमें चलना है? इंशाल्लाह मैं चलूंगा। आसान हो जाती जमात, कम मेहनत में जमातें बन जाती। मस्जिद और जमात को थकना कम पड़ता है। सही तरतीब के साथ काम करने की बुनियाद पर मस्जिद और जमात माशाल्लाह थोड़ी मेहनत में अपने मोहल्ले के सारे मुसलमानों की 100% तरतीब बना लेते। बात बढ़ता, मोहल्ले में ऐसे लोग मिल जाते हैं आज तक इनका एक दिन नहीं लगा। आप 3 दिन की तश्कील, चिल्ले की तश्कील करोगे तो एकदम सटपटा जाएंगे। इनके सामने बात रखो कि भाई हमारे मोहल्ले में देखो वो रिक्शा वाले भाई हैं ना, वो 4 महीने गए जाकर आए। फलाने भाई है ना, वो माशाल्लाह है ना दुकान वाले, वो भी 4 महीने जाकर आए, इनके भी 4 मरतबा चिल्ले लगे। इनका बेटा अभी माशाल्लाह चाहे चिल्ले में चल रहा है। जब अपने मोहल्ले के साथियों की मोहल्ले के बारे में इनको बताया जाएगा, नए आदमी को जिसका आज तक एक दिन नहीं लगा है, इसको बताया जाएगा तो क्या होगा? उसकी भी हिम्मत खुलेगी। नया आदमी 3 दिन के लिए हिम्मत करेगा। नया आदमी क्या करेगा बोलो? एकदम से चिल्ले 4 महीने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन क्या करेगा? 3 दिन के लिए हिम्मत करेगा, 3 दिन के लिए। और उसके साल में 6-7 मरतबा हमारे साथ 3 दिन लग जाते हैं ना, तो जब हमारा साल में चिल्ले जाने का वक्त होता है ना, तो ऐसे नए लोग क्या करते हैं? अमीर साहब तुम्हें चिल्ला में क्या जमाना भाई, सितंबर में मारू नाम लखी लो, इंशाल्लाह आवानो तुम्हारी गाती। क्यों भाई के 4-5 मरतबा 3 दिन आपके साथ लगे हैं। हमारे भाई थे, अल्लाह इनको गरीब के रहमत फरमावे, 2-3 महीने पहले इनका इंतकाल हो गया। ये शुरू में हमारे यहाँ रहने आए, तो मेरे को हर महीने नहीं जा सकता मुदर्रिस था, इसलिए मेरी बारहफात की छुट्टियां थी, तो मैं अपनी जमात बना रहा था। ये हमारे यहाँ किराए से रहने आए थे, एक देहात में रहते थे जहाँ मस्जिद मदरसा कुछ भी नहीं, घरों का माहौल था। वो अपने धंधे से परेशान होकर यहाँ आ गए थे। इनके घर बैठक हुई मेरी और इनको समझाई पूरी बात, तो वो एकदम तश्किल से वहशत में आ गए, क्योंकि नया आदमी था, कभी ये चीज देखी नहीं थी इसने, और उसका पूरा खानदान, इसके ख्यालात दूसरे थे। तो मैंने उनको समझाया कि देखो ऐसा होता है ना कि जमात के अंदर कुछ મને કશું આવડતું નથી, તમે ક્યાં લઈ જાઓ છો મને? મેં આપણે લોકોને કહેવા નથી જવાનું, આપણે શીખવા જવાનું છે। वो तो यूं समझे तबलीग का मतलब दूसरों को सिखाना, ऐसा नहीं है। આપણે શીખવા જવાનું, दुआ सीखवानी, नमाज सीखवानी, आ सीखवानी। तो चलो ठीक है इंशाल्लाह, હું આવીશ। 3 दिन मेरे साथ आए
ہم اپنے شہر سے 35-40 کلومیٹر دور ایک گاؤں کے اندر گئے اور 3 دن میں ان کو بہت مشکل سے کلمہ رٹایا. کبھی وہ ماحول ہی دیکھا تو اس آدمی نے کلمہ سکھایا, الحمد شریف کے کچھ آیتیں اس کو سکھائی. پھر میں نے کہا کہ ان کا نام باؤ بھائی تو 3 દિવસ ઓછા પડશે, તમે મસ્જિદમાં રાત્રે આપણે ત્યાં મોટા માણસો કુરાન શીખે ને એમની સાથે બેસવાનું રાખો. મને તો શરમ આવ્યા, આ ઉંમરે બેહવાનું કે? मैंने कहा ऐसा नहीं है, सब बड़े बैठते हैं, तुमको क्या शर्म आई, तुम्हारी जैसे लोग हैं. बोले ठीक है. तो कभी बैठते कभी नहीं बैठते, क्योंकि वो धंधा ऐसा था इनका, रात को देर से आते थके होते. फिर दूसरे महीने में मेरा तो 3 दिन मैंने दूसरी जोड़ी को मुतवज्जे कर दिया, तो इनको ले जाओ. अल्हम्दुलिल्लाह इनके 4-5 मरतबा 3 दिन लगे तो गश में बैठने वाले बन गए, गश में मुलाकातों में आने वाले बन गए, मसीह और जमात में बैठ गए. फिर मेरी चिल्ले की जमात जब शाबान रमजान में बनी तो मैं अपने साथ उनको चिल्ले में तश्कील करके ले गए. नया आदमी जिंदगी में 42-43 साल की उम्र, कभी इसका वक्त नहीं लगा. लेकिन एक आदमी क्या बोलो, धीमे 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 इसकी इस्तेदाद बढ़ती है. 3 दिन के रास्ते, हम लोग जितने हैं ना सब 3 दिन के रास्ते से तबलीग में लगे. इसलिए हमारे यहाँ 3 दिन और 3 दिन की जमात से बहुत अहम है. मुसलमानों का बड़ा मोहल्ला, 2 जमात बने, 1 जमात बने, और इसमें भी कौन जावे बोलो? तबलीग के पुराने छपाए हुए साथी ही जावे, नए आदमी जावे ही नहीं. तो कभी मेरे दोस्तों भाइयों काम में तरक्की नहीं हो सकती. इसलिए काम में तरक्की का रास्ता यह है कि अपने यहाँ जो जिम्मेदार है ना, छपे हुए बाद जिम्मेदार होते हैं, इनके साथ जमातें बन जाती हैं. ठीक है, जमात तो इनके साथ बने, लेकिन जब जमात के लिए जिम्मेदार का फैसला हो ना, तो इसमें मुआविन टाइप के जो लोग हैं इनको जिम्मेदार बनाओ. मुआविन टाइप के लोग हैं ना, बात तो छपे हुए काटले होते हैं हमारे यहाँ, क्या એટલે हाँ बीजू कोई नहीं, जैसे अजल से लिखवा के लाए हो, समझते हो, फैसला होगा इनके नाम का. अरे भाई अपने साथियों को आगे बढ़ाओ. मुआविन टाइप का आदमी है, 1-2 मरतबा 4 महीने लगे हुए हैं, पाबंदी से चिल्ला लगाता है, ठीक है आपके साथ आता है तो आप इसको जिम्मेदार नहीं, आप ही बनते हैं भाई, इसको जिम्मेदार बनाओ 3 दिन की जमात में, ताकि इसकी इस्तेदाद खुले. इस तरह एक साथी बढ़ाएंगे ना आगे, तो लेकर चलने वालों की तादाद भी क्या हो जाएगी बोलो, बढ़ती जाएगी. 2-4 मरतबा वो 3 दिन की जमात लेकर हमारे साथ चलेगा, फिर इसको समझाओ तू तारी जमात अलग सी बनाओ, तू तारी जमात क्या हुआ अलग सी बनाओ, तारी સાથે अलग થી એક નવી જમાત બનવી જોઈએ. એક અઠવાડિયામાં એક જ જમાત નીકળતી છે, 2 નીકળે, તારી भी निकले मारी भी निकले. बोलो इसमें काम की तरक्की है कि नहीं? अरे बताओ, वरना हम कनात बरतते हैं. हम क्या बरतते हैं बोलो? कनात. जमात निकल जाती है ना, ठीक है भाई, तरक्की का हो रही साथियों की, वो तो जिम्मेदारी का बोझ आदमी अपने जिम्मे लेगा ने तो काम समझेगा, और जिम्मेदारी का बोझ नहीं लेगा तो पीछे पीछे गेटे बकरे की तरह चलेगा. ये गेटे होते ना, चलते रहते हैं, एक खड्डे में गिरा, दूसरा गिरेगा, तीसरे गिरा, चौथा गिरेगा, अगला है ना वो गिरने वाले को नहीं पूछेगा तू क्यों अंदर गिरता है. ऐसे हमारे साथियों को गेटे बकरे की तरह चलने की आदत पड़ गई. अपनी तरक्की, काम की तरक्की, मोहल्ले में नए नए लोग, गांव में नए नए लोग काम के अंदर जुड़े. ये बहुत बड़ा मजमा है ना बस्तियों के अंदर, काम को अच्छी निगाहों से देखता है. काम बहुत सारू છે, बहुत सारू करવું જોઈએ, इनका एक दिन नहीं लगता है. अच्छा काम से वाकई तो इनको मोहब्बत होती है. मेहमान कोई जमात आ जाती है तो पहले ये दौड़कर जमात के खाने की दावत करते हैं. मस्जिद के इमाम साहब से मिलकर, अमीर साहब, भाई अमीर साहब हमारे यहाँ दावत बनता है, आपका नंबर तो बाद में लगता है. अच्छा आप भी दिल बड़ा रखते हैं कि चलो भाई नए आदमी है, इसकी दावत होनी चाहिए, इससे काम से करीब हो जाएगा. ऐसा तबका हर बस्ती में एक बहुत बड़ी तादाद है. इनका वक्त नहीं लगता है, न इनके घरों से लोगों का वक्त लगता है, काम को इस्तेहसान की नजरों से देखते हैं. लेकिन मेरे भाइयों, खाली काम को सराह लेना एक आदमी की तरक्की के लिए थोड़ा काफी है. जब तक वो अपनी जान माल के साथ इस काम में हरकत में नहीं आएगा, वहां तक इसको इस्तेहसान से कोई फायदा नहीं होगा. आप सोचें. इसलिए देखो हमारे यहाँ मस्जिद और जमात का टोला बनता है. ये आपका इज्तिमा है, आप पूछो इसमें नए कितने आदमी आए पर्सन, हालांकि उमूमी इज्तिमा है ना ये. बोलो ये कोई काम करने वालों का जोड़ थोड़ा है, ये तो उमूमी इज्तिमा है. आप इसमें नजर दौड़ो, इसमें पहली मरतबा इज्तिमा को देखने वाला आदमी कौन है?
आप नजर दौड़ो, काम करने वालों का टोड़ा बनता है क्योंकि हमारी सोच में वुसअत नहीं होती और हम काम की तरक्की के बारे में नहीं सोचते हैं, बस हो रहा है ना, कनात बरतते हैं। जमात निकली गई नहीं, गश्त થઈ ગયો ને, જમાત નીકળી ગઈ ચિલ્લાની, જમાત બની ગઈ ને 3 દિવસની, આપણા મોહલ્લામાં ગશ્ત થઈ ગયો ને, બે ચાર જોડીઓ મુલાકાત કરી લીધી ને, ચાલો ભાઈ भाई सोचो तो सही, चक्की चल रही है, आटा नहीं गिर रहा है, चक्की चल रही है और आटा, बरसों से मेहनत करते हैं, 1% नमाजी नहीं बढ़ रहे हैं। जितने जुमा के दिन जुमा के नमाजी मस्जिद के अंदर होते हैं, इतने 5 वक्ता नमाज के अंदर मोहल्ले के लोग नमाज में नहीं होते हैं। ज़ोहर असर मगरिब में आदमी अपने काम में हो सकता है, फजर ईशा में तो लोग मोहल्ले में होते हैं। चाहे शहर हो, कस्बा हो, देहात हो, कोई मोहल्ला हो, कोई फरिया हो, कोई सोसाइटी हो, इसके रईस जितने होते हैं ना, ये फजर ईशा में अपनी मस्जिदों में होते हैं, अपने मोहल्लों में होते हैं। ये फजर में क्यों नहीं आते, ये ईशा में क्यों नहीं आते? कभी बैठकर हमने आपने मस्जिद अजमात ने सोचा, बरसों से फजर में हमारी 1.5 सफ है, 1.5 के 1.25 नहीं हो रही है, समझे ना? बरसों से मेरी तालीम में 20 आदमी बैठते हैं, फजर में 50-60 नमाजी होते हैं, इमाम साहब की दुआ के बाद ये सारे लोग उठकर चले जाते हैं, हम 15-20 बैठते हैं, वही बैठते हैं तालीम के अंदर भी और मस्जिद और जमात के अंदर। क्यों? हमारी सोच कनात की हो चुकी है, हमारी सोच क्या हो चुकी है? कनात की। काम થઈ રહેલું છે ને ભાઈ, ગશ થઈ રહેલો છે ને, जमात निकली રહેલી છે ने। नहीं मेरे भाइयों, हम सोचें, हमारे यहाँ लोग बढ़ने चाहिए। काम की तरक्की यह है कि नमाजी बढ़े, काम की तरक्की यह है 3 दिन की जमातें बढ़े, काम की तरक्की है कि पिछले साल मेरी मस्जिद से 2 जमातें गई थी, इस साल 3 जानी चाहिए, 4 जानी चाहिए। मस्जिद की सतह से सोचे हम, क्या सोचे बोलो? हमारा हर साथी अपनी मस्जिद की सतह से सोचे, नमाजियों की तादाद से लेकर मकामी अमाल में जुड़ने के एतबार से, सालाना खुरूज के एतबार से। वरना जो लोग के सालाना चिल्ले लगते हैं वही लोग के चिल्ले लग जाते हैं, नए लोग चिल्ले में निकलते ही नहीं है। 5-50 आदमी होते हैं ना, वही निकलते हैं। आप देखो जमातों में हमारे मौलाना इब्राहिम साहब देवला, अल्लाह इनको सेहत कुव्वत आफियत नसीब फरमावे, मौलाना कहते हैं नया खून। कोई भी कारखाना चलाने के लिए कच्चा माल, खाम माल चाहिए। अगर कच्चा माल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा बोलो? एक दिन फैक्ट्री कारखाना बंद हो जाएगा। किसी काम को करने के लिए नया खून चाहिए। ये नया खून मजीवार जमात की रोज की मुलाकातों के जरिए, नमाजियों की तादाद के एतबार से बढ़ने के एतबार से, तालीम के हलकों में बैठने की तादाद के बढ़ने के एतबार से, 3-3 दिन की जमातों के अंदर नए नए निकलने की तादाद के बढ़ने के एतबार से, मुझे आपको मेरे दोस्त भाइयों, मजीवार जमात को एक कच्चा माल मिलेगा, नया खून मिलेगा और तरक्की होगी इससे, और हम बड़ी खैर का जरिया बन जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे बोलो? बहुत बड़ी खैर का जरिया बन जाएंगे अपने मोहल्लों के अंदर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का निशान ये था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेहनत थी मदीना तैयबा में, बेनमाजी लोग नहीं थे, समझे ना? मजमा नमाजी हैं, मर्द औरत सारे नमाजी हैं। फजर की नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गलत अंधेरे में हो जाती थी। आज आपने बिल्डाल में नमाज पढ़ी ना, इससे भी पहले हो जाती थी। क्यों? इसलिए कि मजमा अंधेरे ही में मस्जिदों में आ जाता था। मर्द तो मर्द, उस जमाने की औरतें भी मस्जिदों में आती, मस्जिद में औरतें भी आ जाती थी। आप अंदाजा करो, एक मुनाफिक होते थे जिनको बहाना मिल जाता था अंधेरे का फायदा उठाकर फजर में न शिरकत करने का। अंधेरे की आड़ में वो फजर में नहीं आते थे, मुखलिस मुसलमानों से मस्जिदें भर जाती थी। हम सोचे रमजान में हमारी फजर देखो, चलो मैं आपको बताऊं, ओ भाइयों, ओ सोने वालों, रमजान में आपने देखी अपनी फजर, मस्जिद की फजर देखी है? रमजान में फजर की नमाज के अंदर आपकी मस्जिद में आपके मोहल्ले के ही मुसल्ली होते हैं, कोई इधर उधर से नहीं आता है, क्योंकि सहरी के बाद फौरन नमाज होती है, 10 मिनट के बाद। दूसरे मोहल्ले से कोई आता है? बोलो। आपको अपने फजर की नमाज की सही तादाद का अंदाज लगाना है ना, तो आप रमजान में फजर की नमाज देख लो अपनी मस्जिद में। ये तादाद 11 महीने होनी चाहिए। इस तादाद को लाने के लिए आपकी मस्जिद और जमात को क्या करना पड़ेगा बोलो? मुलाकात।
اور وہ ملاقات ہے قابو میں آئے گی صبح میں. جتنی جوڑیاں صبح میں محلوں میں حرکت میں رہے گی نا، بھلے آپ پورے 2.5 گھنٹے صبح میں نہیں دے سکتے ہیں تو کم از کم 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دو، باقی کا وقت مغرب بعد دے دو، عشاء کا بعد دے دو. اللہ ہمت دے تو صبح ہی 2.5 گھنٹے پورے کر کے نکلو. کب نکلو بولو؟ صبح میں. ہاں، آپ گھروں میں جا کر ایمان کی بات آخرت کی بات کریں گے نا، سنیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے ایمان میں تازگی پیدا کرے گا. اللہ سے ہونے کی بات، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کی بات، آخرت کی بات، دوزخ جنت کی بات، حساب کتاب کی بات، یہ چیزیں کیا کرتی بولو؟ ہاں، دائی کی دعوت جو ہے نا سب سے پہلے اس کے دل پر اثر کرتی ہے. بولنے والے کے ایمان میں تازگی قوت پیدا ہوتی ہیں، اور ایسے تازگی والے قوت والے ایمان کے ساتھ انشاءاللہ آپ دکان میں، بازار میں، جاب پر، نوکری پر، پھیری پر، لاری پر، رکشہ پر، ٹیمپی پر، کہیں بھی ہیں، اس تازے ایمان اور اس قوت والے ایمان کی برکت سے آپ کی ایک نماز بھی دن میں جماعت کے بغیر نہیں جائے گی. کہ آپ صبح ایمان کے بول بول کر آئیں 1.5-2 گھنٹے تک، 2.5 گھنٹے تک، اس سے ہمارا ایمان تازہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گھروں کے باہر پھول چھوڑوے کے کنڈے رکھتے ہیں، اور پانی کب ڈالتے ہیں؟ رات عشاء بعد، مغرب بعد. ارے بولو کیوں فجر بعد ڈالتے ہیں؟ تازہ رہیں. تازگی جو ہوتی ہے ان کنڈوں میں پانی ڈالنے سے فجر بعد صبح میں پانی ڈالو تو ان میں کیا رہتی بولو؟ دن بھر تازگی رہتی ہے. صبح صبح گھر گھر کی ملاقاتوں میں، فرد فرد کی ملاقاتوں میں بیٹھ کر ایمان کی بات کرنا یہ محلے والوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ محنت کرنے والے جو ہیں نا ان کی ضرورت ہے. میں ایمان کی بات کروں گا تاکہ میرے ایمان کو پانی پہنچے، میرا ایمان تر و تازہ رہے، اور اس تازگی والے ایمان کی وجہ سے دن بھر مجھ پر غفلت نہ ہو. یہ تازگی والے ایمان کی وجہ سے دن بھر میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں، آنکھ کو، کان کو، زبان کو، ہر چیز کو گناہ سے بچاتا رہو. عشاء کے بعد آپ ملاقاتوں کی ترتیب بنائیں گے تو ظاہری بات ہے آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، جو سن رہا ہے وہ بھی تھکا ہوا ہے نا. آپ بھی بگا سے مارتے ہوئے بات کریں گے، وہی بگا سے کھاتے ہوئے بات سنے گا، وہ بھی چاہے گا جلدی پورو کری نہ جائے تو ہارو، اور آپ بھی کیا سوچیں گے وہ جلدی پورو تھی جائے تو ہارو. بولو اس میں کوئی پٹیا آئے گا؟ ارے ایسی ملاقاتوں میں کوئی پٹیا آئے گا؟ فارمولیٹی ہو جائے گی. صبح مشورے میں کہیں گے فلانا نے گھیر گئے، فلانا نے گھیر گئے، آم تھو تیم تھو، مسیح اور جماعت خوش، ماشاءاللہ ہماری جوڑی ملاقات માં છે. ભાઈ ફોર્મેલિટી થાય છે. શું થાય છે બોલો? ફોર્મેલિટી થાય છે, કામ નથી થતું. عشاء کی بات کی ملاقات ہمارے بزرگ سمجھاتے ہیں جو آدمی جس وقت کے اندر ملتا ہے نا اس وقت کے اعتبار سے اپنے وقت کو فارغ کر کے پہنچو. ہمارے یہاں بعض مرتبہ ہے نا، بعض لوگ ریتی کپچی کے دھندے کرنے والے ان کو سویرے بہت نکل جانا پڑتا ہے، ریتی کی گاڑیاں جاتی رات میں تو سودے ہوتے ہیں. ہمارے محلے میں ایک دو فیملی ایسی تھی، یہ ہم صبح میں جاوے ملاقاتوں کے اندر ہماری جماعتیں تو ان کو نہ ملے مسیح اور جماعت کا آئی گھر رہی جائے سک આમાં કોઈ મળતું હવારે જઈએ એટલે કે عورتوں جو ہے ઘરમાં پہلا બધા چلا جاتے ہیں دور کے آفس پر، એમની રહેતી નહીં آفس پر. میں نے کہا وہ آفس پر جاتے ہیں تو تم 10-11 بجے آفس پر پہنچو، 10-11 بجے تمہارے دھندے پر جانے کا ٹائم ہے، آدھ گھنٹہ قربانی دے دو. تمہاری یہ ملاقات قربانی کے ساتھ ہوگی تو اس کے دل پر اثر کرے گی، کیونکہ وہ محلے کا آدمی جانتا ہے یہ ٹائم بھی ان کے دھندے کا ٹائم ہے، یہ اپنے دھندے کا ٹائم چھوڑ کر میری ملاقات کے لیے آئے. میں نے ابھی اسی سفر میں کسی جگہ ایک کارگزاری سنائی. ہمارے یہاں ایک مسیح اور جماعت ملاقات میں وہ کہنے لگے ایک آدمی ریلوے میں پھیریا ہے، سویرے 6:45 کی میمو میں چلا جاتا، ملاقات نہیں ہوتی اس کی، 6:15 بجے وہ نکل جاتا ہے. تو سردیوں میں تو 6:45 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے تو فجر بعد بھی ملاقات پہ جاوے تو اور رات میں دیر سے آوے. یہ پھیریوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے. بولے پورا محلہ ملاقات میں ہو گیا، یہ گھر باقی رہ گیا. جب بھی جاتی اس کی بیوی کہتی نتی کام پر گیا جائے. اتنی صبح کون سا کام ہوتا ہے؟ یہ تو پھیریا ہے، 6:45 کی میمو بڑودا جاتی اس میں ہوتا ہی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا اس کی اجازت گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اس کے ساتھ کیا کرو، ٹرین میں بیٹھ جاؤ ٹکٹ لے کر، تم کو کچھ نہیں کرنا ہے. جب وہاں ٹرین میں بٹھا کر اس سے بات کرو. تو ہمارے ساتھی دوسرے دن 6:45 کی میمو میں اس کے ساتھ ایک مسجد میں بہت سویرے بس اسٹینڈ پر مسجد کے فجر کی نماز ہوتی ہے، وہاں نماز پڑھ لی انہوں نے، اور بس اسٹینڈ ریلوے اسٹیشن نزدیک ہے، وہاں سے فوراً ریلوے اسٹیشن آیا، ٹکٹ لی، بیٹھ گئے اور اس کو ڈھونڈ ڈالا اندر.
सवार के अंदर वो चने की दाल बेच रहा था, अरे कौन खाएगा, बेच रहा था, धंधा है आदमी। इसको लेकर एक तरफ बैठा है इसको और कहा सुबह मेरा मदरसा होता है तो मैं रात को मुलाकात में निकला अपनी जोड़ी के साथ। एक घर में, हमारे यहाँ किराएदार बहुत है, बदल चलते रहते हैं, एक घर के अंदर बैठा मुलाकात के लिए, तो मेरे साथ मेरा चचेरा भाई था। मैंने कहा मोटा भाई कोઈક નવું રહેવા આવ્યું છે આ ઘરમાં, તમે ઓળખતા નથી કે 3 મહિના પહેલા અહીંયા આવેલા, કોઈ બીજું કોક હતું, હવે કોઈ બીજું કોક છે કે ये मानुस है गैर मानुस क्या पता, क्योंकि हमारे यहाँ गैर मानुस भी होते हैं तो माथाकूट होती है, झगड़ा झुगड़ी भी हो जाती है, कोई घर के बाहर ही हमको सुनाते हैं, डांटते हैं। आपका गैर मानुस इलाका तो अच्छा है, माथाकूट नहीं होता, हमारे इस तरफ माथाकूट होती है। मैंने कहा चलो ना हिम्मत करके जावे, और कोई माथाकूट तो सुन लेंगे, अपने क्या इसके से लड़ना है। हमने दरवाजा इसका खिचखिचाया, वो खाने की तैयारी कर रहा था, मेज पर खाना रखने की इसकी बीवी तैयारी कर रही, तो उसने अपनी बीवी से कहा कि रुक जा, और वो दरवाजा खोला इसने जाली और हमको अंदर बुलाया, वो भी हमको ताज्जुब की निगाह से देखना। हमने कहा मसीह और जमात के साथी हैं, आपकी मुलाकात के लिए, आपका नाम, बैठे इसको बिठाया कुर्सी पर, नाम ठाम सरनामा ये सब इसको पूछा हमने, पूरा इसका बायोडेटा है। नया आदमी था और हमारे यहाँ बाहर से रहने वो आया था। मैंने पूछा तू कहाँ का है, कहा घोड़ासर का हूँ। मैं समझ गया घोड़ासर पूरा गैर मानुस कस्बा है मुसलमानों का, जमात नहीं जाती वहाँ पर। मैंने कितने टाइम से यहाँ रहते हो, कहाँ बोले तकरीबन 6-7 हफ्ते हुए, अभी नया नया रहना आया हूँ। फिर हमने इसको नमाज की तरगीब दी, मंगल के दिन गश्त में चलने की तरगीब दी। 20 मिनट इससे अच्छी दिन की आखिरत की बात करने के बाद मैंने उनसे कहा भाई साहब कुछ तबलीग को आप जानते हैं समझते हैं, क्योंकि आपके गांव में तो जमात आती नहीं है, तो आप कुछ जानते समझते हैं, आपका कभी कोई तबलीग में आना जाना हुआ? तो उन्होंने कहा कि मेरा पहला चिल्ला 1987 में फजले करीम भाई के साथ लगा था। तो मेरी तो रगों में वो दौड़ा, खून दौड़ा। मैंने कहा ये तो अपना है, क्या समझते थे, क्या निकला ये। फिर कहा दूसरा कब लगा था, तो दूसरा 92 में शिहोर इज्तिमा में हज़रत रहमतुल्लाह जो तशरीफ लाए थे, तखत से ऐलान हुआ कि जो यहाँ से वक्त लगाएगा वही आदमी चिल्ले, वही हजरत से मुसाफा करेगा। तो हजरत जी से मुझे मुसाफा करना था, मैं तो गया था थैली लेकर 3 दिन की इज्तिमा की, तय कर लिया चिल्ले में जाऊंगा और हजरत से मुसाफा करूंगा। तो दूसरा चिल्ला वहां लगा। फिर मैंने कब लगा, उसने 2-3 चिल्ले और गिनवाए। मैंने कहा आप मस्जिद में नहीं दिखते हो, आते नहीं। बोले मेरे पैर में तकलीफ है, मैं चल नहीं सकता, मैं स्कूटी पर आता जाता रहता हूँ। मैंने क्या तकलीफ है आपका? मुझे गोली लगी है। आपको गोली लगी? खैर तो है। बोले कोई जमाने में अपनी जवानी में लतीफ गैंग का आदमी था मैं। अच्छा। पुलिस की गोली लग गई मुझे, तो मैं दिल में सोचने लगा ये तो कोई पुलिस के इसका वो आदमी है। तो मैंने कहा आप रहते? बोले मैं हर 3 महीने में जगह बदल देता हूँ, पुलिस के चौपड़े पर वांटेड आदमी अरेस्ट है कि लोग बदलते रहते हैं जगह अपनी। मैंने कहा एक काम करो, कम से कम आप फजर में आ जाया करो, ईशा में आ जाया करो, गश्त का दिन मंगल का इसमें आ जाया। बोले ठीक है इंशाल्लाह मैं आ जाया करूंगा। उसकी जो कैपेसिटी थी ना, इस्तेदाद, उसी के मुताबिक उसकी तश्कील की। नए नए लोग होते हैं, इसलिए हमारी मस्जिद और जमात लोगों की मुलाकातों में कोई गफलत न बरते। हमारे इकबाल भाई मरहूम थे बहरा अहमदाबाद के, उन्होंने मुझे एक मरतबा सुनाया, मैं रयूब भाई पान वाले एक जमाने में हमारे कालूपुर के अंदर रोजाना घरों के अंदर तालीम का अमल शुरू हो, तरगीब देते थे लोग, इंशाल्लाह माशाल्लाह कहते, लेकिन चीज काबू में नहीं आ रही थी, काबू में नहीं आ रही थी। तो हमने ये तरीका इसका अपनाया कि भाई तबलीग निसाब उस जमाने में कंथारिया की ये नहीं छपी थी अपनी फजाइल अमाल, वो तबलीग निसाब पुरानी छापी से छपकर आती थी। तो तबलीग निसाब को थैलियों में लेकर जाते थे घर घर की मुलाकातों में, ईमान अमाल आखिरत की बात, घर में तालीम, इसके फजाइल, इसके फायदे समझाकर, और उससे कहते देखो हम किताब की तालीम तुम्हारे घर में करते हैं, और इसके सामने 5 मिनट एक हदीस फायदा पढ़ते हैं। बोले ये अमल हुआ आपके सामने, आप ये किताब घर में रखो, 60 रुपया उस जमाने में कीमत थी, 60 रुपये मुझे दे दो, अरे किताब दोनों अपने पास रखो और घर में रोजाना तालीम शुरू करो। बोले कई घरों में इस तरीके से अमली तौर पर हमने तालीम शुरू करवाई। बोले एक मरतबा ऐसा हुआ, मुलाकातों में तरतीब सीरियल नंबर के साथ चलते थे, बीच में एक बहुत सख्त मुखालिफ आदमी का घर था। तो अगले दिन हमने मशवरा कर लिया कि इसको छोड़ देंगे, अगले घर में जाएंगे, मैं माथाकूट है वहां जाएंगे। क्या होगी? बोले माथाकूट होगी।
تو ہم دوسرے دن ملاقاتوں میں گئے, اس گھر کو چھوڑ کر اس کے اگلے گھر میں گئے اور اس کے 2-3 گھر ملاقات کر کے صبح مسجد اور جماعت کے اندر بیٹھے تو وہ ہمارا پڑوسی آ کر کہنے لگا جس گھر کو کل آپ نے چھوڑ دیا نا, ان گھر کے لوگوں نے پوچھوایا کہ آپ لوگ ہمارے گھر کیوں نہیں آئے. اس گھر کی خاتون نے یہ کہلوایا کہ آپ سیریل نمبر سے ملاقات کرتے آ رہے تھے, ہم دیکھ رہے تھے, تو ہم کو ایسا لگا آپ اگلا نمبر ہمارے گھر کا ہے, تو ہم نے آپ کے استقبال کے لیے گھر میں ناشتہ وغیرہ سب تیار کر کے رکھا تھا. بولے بہت برا لگا ہم کو, ہمارے گھر نہیں آئے. بات مرتبہ سوچتے کچھ ہے اور بولو ہوتا کچھ ہے. اس نے زن کے ساتھ ایک ایک گھر کو ٹارگٹ بنا کر, اس گھر میں 4 بالغ مرد ہیں, 3 آپ کو بر وقت ملے, ایک نہیں ملا تو وہ گھر کی ملاقات ادھوری ہے. پھر اس گھر میں جانا ہے, اس چوتھے سے پھر ملنا ہے. 100% لوگوں سے بیٹھ کر ایمان کی بات, آخرت کی بات, مسجد اور جماعت میں بیٹھنے سے لے کر 4 مہینے کی تشکیل, ساری چیزیں اس کے سامنے آنی چاہیے. سمجھے نا میرے بھائیوں, فجر کی نماز کے بعد کی ملاقاتوں میں برکت ہے. کیا ہے بولو, برکت ہے. عشاء کے بعد, مغرب کے بعد فارمولیٹی ہے. ایک فارمولیٹی سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے. کام ملاقاتیں جاندار ہوتی ہیں نا, تو اس میں کیا ہوتی ہے بولو, سامنے والی کی طبیعتوں پر بھی اثر کرتا ہے, ہماری طبیعتوں پر بھی یہ چیز اثر کرتی ہے. اس طریقے سے کوئی مسجد کے اندر ملاقاتیں ہوتی ہیں فجر کی نماز کے بعد. کھڑے کر بتاؤ کون سی مسجد آپ کی کرتا ہے. یہ جتنے تقاضے ہیں نا مسجد اور جماعت کے, 3 دن کے, چلے کے, 4 مہینے کے, اندرون کے, بیرون کے, ہے نا, نمازیوں کی اوسط بڑھانے میں, یہ ہمارے ساتھی گھڑی دیکھ کر روزانہ 2.5 گھنٹے دے ہوئے نا, 2.5 گھنٹے بہت آسانی کے ساتھ کیا ہو جائے بولو, سارے تقاضے پورے ہو جائیں. دیکھو آپ نے یہ ہماری گھڑیال ہوتی ہے کانٹے والی, اس میں 3 کانٹے ہوتے ہیں, سیکنڈ کانٹا, منٹ کا کانٹا اور کلہ کا کانٹا. اس میں سیکنڈ کا کانٹا ہے نا, وہ برابر چلتا رہتا ہے, بولو رکتا ہے. اگر وہ رک جاوے تو کیا ہوگا, گھڑی بند ہو جائے گی. سیکنڈ کا کانٹا چلتا ہے تو اس کے پیچھے منٹ کا کانٹا چلتا ہے, اور منٹ کا کانٹا چلتا ہے اس کے پیچھے کلہ کا کانٹا چلتا ہے. بنیاد کیا ہے بولو, سیکنڈ کا کانٹا ہے. ہر ہمارا مسجد وار جماعتیں جتنے ہیں نا اس کے ساتھی, یہ سب اپنے لیے سیکنڈ کا کانٹے ہیں. آپ حرکت میں رہیں گے تو آپ کی مسجد اور حلقہ حرکت میں رہے گا. آپ سب سیکنڈ کے کانٹے ہیں, میں آپ سب, ہم جتنی حرکت میں رہیں گے نا میرے بھائیوں, پیچھے محلہ بھی کیا رہے گا بولو, حرکت میں رہے گا. ہاں, نمازیوں کی تعداد, گھروں میں تعلیم کی تعداد روز بروز بڑھتی جائے گی. اور جب نیکی کسی محلے گاؤں کے اندر میرے بھائیوں اپنا قرار جگہ پکڑ لیتی ہے نا, تو جاء الحق زهق الباطل, حق آ گیا, باطل ختم ہو گیا. نیکی آئے گی تو بدیاں دور ہو جائے گی. لڑکوں میں سے, لڑکیوں میں سے, مردوں میں سے, عورتوں میں سے, سارے محلے میں سے, گاؤں بستیوں میں سے یہ سارے خرافات نکل جائیں گے. جس سے میرا آپ کا دل دکھی ہوتا ہے, وہ میں آپ دیکھ بھی نہیں سکتے, برداشت بھی نہیں کر سکتے ہیں. ان خرافات کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں, برداشت بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس کے دور کرنے کا آسان, مثبت اور پازیٹو طریقہ کیا ہے بولو, گھروں کے اندر بیٹھ کر ملاقاتیں. یہ مسجد اور جماعت, یہ مسلسل کوئی دن ناگا کیے بغیر, کوئی دن کھائے بغیر ناگا جاتا ہے بولو, ارے بولو میرے بھائیوں, کوئی دن میرا آپ کا چائے کے بغیر ناگا ہوتا ہے؟ ضرورت ہے کھانا پینا سونا. ایسی ہی روزانہ کے 2.5 گھنٹے میری کیا ہے بولو, ضرورت ہے. ہاں, میرے ایمان کی ضرورت ہے. یہ نیت اپنی نیت سے 2.5 گھنٹے لگاؤ, محلے والوں کی نیت سے نہیں. تبلیغ تو اپنے لیے ہے. اس کی برکت سے دن بھر ہماری نماز, تلاوت, تسبیح, اعمال کی پابندی ہوگی. دل میرے بھائیوں اندر سے نرم رہے گا, سخت نہیں ہوگا, سمجھے نا, آخرت کا استحضار رہے گا. کاروبار میں اگر کہیں کچھ بات ہو گئی نا تو آدمی آخرت کی بنیاد پر اس کی چھوٹ چھاٹ کر دے گا. چل بھائی تو لے لے, چلے جائے, اللہ بہت بڑا ہے. یہ حسن اخلاق, یہ جذبے بنے رہتے ہیں روز کی ملاقاتوں میں ایمان کی بات کہنے سننے کی برکت سے, سمجھے نا. ہاں, روز کی بات, روز کی ملاقاتوں میں یہ میری ضرورت ہے. اور میرے بھائیوں ہم آپ سے اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ 2.5 گھنٹے سے 3 دن کی جماعتیں بناؤ, 2.5 گھنٹے سے, وہ تو اس کے ضمن میں ہے.
وہ اس کے ضمن میں ہے. اصل چیز تو میری خود کی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ قبر میں مجھ سے میرے دین کے بارے میں پوچھے گا, میرے ایمان کے بارے میں پوچھے گا. محشر میں میرا حساب میرے سامنے ہوگا اور میرا ہی ہوگا. میرے ساتھ کسی اور کا عمل کو اللہ تعالیٰ اس میں شامل نہیں کرے گا. ہم میں کہ ہر آدمی کو اپنی خود کی ضرورت سمجھ کر, اپنی خود کی ایمان کی غذا خوراک سمجھ کر 2.5 گھنٹے لگانے طے کرتے ہو انشاءاللہ. گھڑی دیکھ کر لگاؤں گے, کون کون لگائے گا؟ گھروں کے اندر تعلیم کو بڑھاؤ. دیکھو تعلیم بہت اونچا عمل ہے. مسجد کی تعلیم میں محتاج سمجھ کر بیٹھو. جن لوگوں نے گھر گھر کی ملاقاتوں میں تعلیم میں بیٹھنے کا ارادہ کیا ہے, بہت سی مرتبہ مسجدوں میں لوگ ہوتے ہیں, ہم ان کو وصول نہیں کرتے. اب وہ بھی گھر سے نکلے فجر پڑھنے, میں بھی نکلا, راستے ملاقات ہو گئی, تو کم از کم سلام دعا کے بعد ایسا فجر پچی تعلیم تھا بیس جو بس 2 بول خالی فجر پچی تعلیم تھا بیس. رات گھر میں اس میں گھر گھر کی ملاقاتوں میں اس سے بات ہوئی تھی, اس سے نیت کی روزانہ تعلیم میں بیٹھوں گا. فجر تو پڑھتا ہے لیکن دعا ہونے کے بعد اٹھ کے چل دیتا ہے. ہم وصول نہیں کرتے, اس لیے برسوں سے 10 12 15 18 20 بیٹھتے ہیں. تعلیم مسجد کی گھروں کی دھیان توجہ کے ساتھ سنیں, استحضار کی نیت سے سنیں. ہاں برسوں سے تعلیم سنتے ہیں, 10 حدیث ہم کو یاد نہیں ہے, 10 حدیثیں یاد ہیں 10. آپ دیکھ لو, ایمان کی 10 حدیث بول, نماز کی 10 نہیں یاد ہے. حالانکہ اس کو یہاں بیٹھو پوچھو تیرے دکان کے اندر فلانی چیز, تو یہاں بیٹھے بیٹھے فون سے اپنے آدمی کو بتائے گا کہ 4تھا نمبر نہ پاٹیا پر کارا ڈبا نہیں پاچا نانی ڈبے مکے لیچے اٹھا لیتے آدمی. سمجھے نا, وہ یہاں بیٹھے بیٹھے بیٹھا دے گا. کیوں؟ اس کو دل پر لیا ہے, اس کو دل پر نہیں لیا ہے. ایک فارمیلٹی ہو رہی ہے تعلیم. گھر کی مسجد کی تعلیم میں ہم بھی بیٹھے, مجمع بیٹھے, اس کی فکر دھیان توجہ عظمت کے ساتھ بیٹھنا. گھروں میں اپنی موجودگی کے سامنے تعلیم کرنا, گھروں میں اپنی موجودگی کیا. دیکھو گھروں کے اندر تربیت کے نظام کا مرد ذمہ دار ہے. تعلیم اس کی شروعات ہے, آگے اور بڑھنا ہے. شروعات کس سے کرنا ہے بولو؟ تعلیم کے حلقوں سے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو, امی جان عائشہ صدیقہ کو, حضرت زینب حفصہ کو, ہے نا, حضرت صفیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو, جو نبی کی پاک بیویاں امت کی مائیں ہیں, ان کو حکم دیا کہ اپنے گھروں میں قرآن کی حکمت یعنی حدیث کی باتوں کے چرچے مذاکرے کیا کرو. کیا ہوگا کہ اللہ اس کی برکت سے تمام قسم کی گندگیوں سے اللہ تمہیں پاک رکھے گا. بولو اس کے ہم محتاج ہے کہ نہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے ہونے چاہیے, ہم خود شرکت کریں. فون درمیانی تعلیم کے اندر کسی کی رنگ بٹھے نا, اٹھ کر مت جاؤ بات کرنے کے لیے, فون کو سائلنٹ کر دو. رنگ کو کیا کہتے ہیں, فون کو اس وقت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے خاموش کر دو. تعلیم کے درمیان کسی کا فون آیا, آپ نے ریسیو کر لیا, آپ نے ہائے ہلو کر لیا, بچے آپ کی یہ سمجھیں گے کہ یہ تو تعلیم سے زیادہ اہم ہے موبائل, اس لیے ابا نے تعلیم کو چھوڑ کر کیا کر لیا بولو, فون پر بات کر. تعلیم ہے ہماری خود کی, یہ نہیں کھا کے نکلے اللہ بھائی تعلیم کر ہی لے, جو چلے گئے پان کے گلے پر, گاؤں کی بیٹھک پر, دوستوں کے پاس, یاروں کے پاس. ایسے نہیں ہوتا ہے. کہیں باہر گئے رات میں تو بھی گھر والوں کو یا بھائی تعلیم تھا ہی, تعلیم کر لے, جو ضرورت سے باہر ہے, رات میں گھر میں نہیں آنے والے, جماعت میں گئے, کاروبار کے لیے گئے. یہ چیز گھروں میں بہت بنیادی چیزیں ہمارے بچوں عورتوں کی تربیت کے لیے. جس کی برکت سے اللہ ہمارے اندر تبلیغ چلائے گا, گھر والوں میں تبلیغ چلائے گا. فضل کریم بھائی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے, ہمارے آنند میں مجھے یاد ہے پڑتا بیان میں کہا کہ بھائی ہم سب تبلیغ میں چلتے ہیں, ذرا سوچو ہمارے اندر تبلیغ کتنی چل رہی ہے, تبلیغ ہمارے اندر کتنی چل رہی ہے. یہ تعلیم کے حلقوں کے راستے سے گھر والوں کے اندر بھی کیا ہونی چاہیے بولو, اعمال کی عظمت اور اعمال کا اہتمام ہونا چاہیے. ورنہ آدمی پہلی سب کا نمازی ہوگا, مسجد مدرسوں میں ہزاروں روپیوں کا چندہ دیتا ہوگا, حاجی نمازی ہوگا, لیکن جب گھر میں تعلیم کے حلقے کے راستے سے بچوں عورتوں کا دینی ذہن نہیں بنایا ہے, نقصان یہ ہوگا جب گھروں میں شادیاں ہوگی نا تو بچے اور گھر والے اور آپ میں 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. بچے ماں کی فیور کریں گے, ماں الگ ہو جائے گی, بچے الگ ہو جائیں گے اور آپ الگ ہو جائیں گے. وہ ایک الگ پارٹی, آپ الگ پارٹی, آپ کا نہیں چلے گا.
آپ مسجد کے پہلے صف کے نمازی ہیں، ہزاروں روپے مسجد میں چندے میں دیتے ہیں، لیکن شادیوں میں خرافات ہوں گے. آپ سے کوئی کہے گا بھائی صاحب یہاں تمہارے گھر آ بدوں شو کرے کہ یار اور تو نہیں مانتی، بہرا نہیں مانتا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اپنے ہم خیال بناؤ ان کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کی خواتین کو اپنے ہم خیال بنایا تھا. آپ کے قربانی کا جو مزاج تھا نا، اس میں سب سے بڑی معاونت آپ کے گھر کی خواتین کی تھی. صحابہ کے عمومی گھروں میں یہ چیز تھی کہ گھر کی عورتوں بچوں کو اپنا ہم خیال معاون بنائے. اس کے لیے میرے عزیز و میرے بھائیوں، ہمارے تعلیم کے حلقوں میں مسجدوں میں ہم بیٹھے روز کا مجمع بڑھے، اس کی محنت کریں، اور گھر کی تعلیم میں ہماری شرکت کے ساتھ روزانہ چاہے مغرب بعد چاہے عشاء بعد جیسی سہولت 20 منٹ تک پورا تعلیم کا حلقات، اور کبھی کبھی 6 نمبر کے مذاکروں کے ساتھ ہماری یہ تعلیم کا حلقہ روزانہ پابندی کے ساتھ گھروں میں ہونا چاہیے، ہے نا. اور مسجد اور جماعت کے اندر کبھی کبھی پوچھ لیا کرے بھائی کونے گھر تعلیم تھا، ترغیب دے دے. ہفتاری عورتوں کے تعلیم کا جو بیان ہوتا ہے نا، عورتوں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے نا، اس میں 2-4 ہفتے کے بعد مرد کی بات ہوتی ہے، تو اس میں بھی ترغیب زیادہ تر کس کی ہو بولو؟ گھروں کے اندر تعلیم کی ترغیب ہو. ہماری ہفتاری اجتماع جو ہوتا ہے گشت کے بعد جو بیان ہوتا ہے نا، اس میں 5 اعمال کے اندر محلے والوں کو بھی ترغیب دے تعلیم کی گھروں کے اندر. اس کو زندہ کرنے کا، اس کو بڑھانے کا یہ طریقہ ہے. ورنہ برسوں سے 12 گھر میں ہو رہی ہے، 13واں گھر نہیں آ رہا. آپ دیکھ لو روٹین آنکڑا ہے وہی 12-13 بھائی بیجا چھیت نہیں. حالانکہ سب کے گھروں میں فضائل اعمال ہوتی ہیں. ہمارے گجرات میں میں نے دیکھا سب سماجوں میں جب بچیاں رخصت ہو کر اپنی سسرال میں جاتی ہیں نا، تو ماں باپ جیسے قرآن کی پیٹیاں ان کی پیٹیوں میں رکھتے ہیں نا، ایسے فضائل اعمال بھی رکھتے ہیں. کیا لے جا گھر میں تعلیم کروانی، لیکن وہ وہیں رہتی ہے شوکیس میں، گھر کی الماری میں رہتی ہیں، نیچے نہیں آتی. کیوں؟ گھر کا مرد فکر نہیں کرتا ہے. ان مسیح اور جماعت اس کی ترغیب دیتی ہیں، اس لیے گھر بڑھتے نہیں ہیں. جب میرے بھائیوں گھروں کے اندر خیر کی چیزیں پڑھنے سننے کا مزاج نہیں ہوگا تو شیطان تو اپنا کام کرے گا. پھر آج کا زمانہ جس میں بقول قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ زمانہ ایسا آئے گا، جب نیا ٹی وی نکلا نا تو قاضی صاحب کہتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا ہاتھ میں ٹی وی آ جائے گا. یہ کیا آ جائے گا بولو؟ دیکھو ہاتھ میں ٹی وی ہے. پہلے تو پورے محلے میں ایک گھر میں ہوتا تھا، مالدار کے گھر میں. شروع میں تو دودھ کی ڈیریوں میں ہوتا تھا، پھر 1981 کے بعد گھر گھر میں آیا، مالداروں کے گھر میں آیا، اور 85-86 کے بعد رنگین آیا اور سب کے گھر میں آیا. اب ہاتھ میں آ گیا. سمجھنے بھائیوں، شیطان کے جتنے بہکانے کے آلے حربیں وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ ہیں. جو زمانہ میرے بھائیوں قیامت سے قریب ہوتا جائے گا، ایسی چیزیں دنیا کے اندر وجود میں آتی جائے گی. ان تمام کا توڑ یہ اعمال ہے. ان فتنوں سے بچاؤ، ہمارے گھروں کا، محلوں کا، گاؤں اور قصبوں کی حفاظت ان اعمال میں ہے. فرد کی حفاظت ہے. جو اعمال نبوت ہیں، یہ اعمال تبلیغ نہیں ہیں. آپ اس کو تبلیغ والوں کی اپج نہ سمجھیں، یہ اعمال نبوت ہیں. ہر نبی نے اپنے مجمع کی تربیت اس راستے سے کی ہے. تعلیم کے حلقے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں حضرت ارقم ابن ارقم کے مکان میں یہ تعلیم کے حلقے آپ کے پاس صحابہ جمع ہوتے تھے. اور ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی میں آپ کی مجلس لگتی تھی. تربیت ہے تعلیم کے حلقوں میں. اس لیے میرے بھائیوں یہ بڑے ہماری مسجدوں میں اس کی تعداد بڑھنی چاہیے. شرکت والوں کی کوشش ہو. مسجد اور جماعت کا یہ فکر ہونا چاہیے بھائی 50 مانس فجر میں ہوئے چھے، تعلیم میں 16 مانس بھی 34 زبو تیرے جتورے آنو رستوسو اب ادھا فجر نہ نمازی چھے اور ورسوں کی ماشاءاللہ پابند چھے. ٹھیک چھے ہمیں 2-5 مانس کوئی مجبور ہسے جاب کرنا رو سوارے ویلو جنارو سوارے کوئی روٹی ہسے، باقی اب ادھا فجر پڑھی نہ گھرے بیسی رہے اتا ہوئی جائے. کوئی دیندار ہو تو یاسین شریف پڑھے نہ گھر میں بیسی نہیں شک پڑھ لے. آپ میں کی سوچ یہ ہونی چاہیے یہ بیٹھیں اور ان کے ساتھ فجر پڑھنے والے بڑھیں، وہ بھی اس تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں اور گھر گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ ہو جائیں. کروں گے اس لائن سے فکر انشاءاللہ. اچھا اس سال کے اندر کوئی مسجد ایسی ہے کہ پچھلے سال 2024 کی شروعات میں ہماری یہاں 22 گھر میں ہوتی تھی، مسیح اور جماعت نے محنت کی 12-13 گھر بھر گئے، 35 ہو گئے، 40 ہو گئے. کوئی مسجد کے پاس ایسی کارگزاری ہے؟
भाई नियत करो, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे इस लाइन से, ठीक है इंशाल्लाह। भाई कठोर से एक आदमी आ जाओ। हज़ाई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमारे गश्त के दिन के अंदर हम लोग जब अपनी मस्जिदों में आते अपनी जॉब से, नौकरियों से, तो हम ऐसे रास्तों से आते थे जहां से हमारे निगाहों की हिफाजत हो, गलियों कूचियों से अपनी आंख की हिफाजत, क्योंकि अल्लाह ने ये काम तो मासूम अंबिया से लिया, मासूम अंबिया से लिया। ये काम अल्लाह ताला ने हमें खत्म नबूवत के सदक़े में दिया है। मस्जिदवार जमात सुबह से इसके लिए फिक्रमंद हो। गश्त खाली मस्जिदवार जमात का अमल नहीं है, पूरी मस्जिद के मुसलमानों का अमल है। ये सोच बनाओ, मस्जिद का हर मुसलमान हमारे साथ कहाँ होना चाहिए? बोलो बोलो, कहाँ होना चाहिए? हाँ, गश्त खाली मस्जिदवार जमात का अमल नहीं है। मोहल्ले में आग लग जाती है तो मस्जिदवार जमात फिक्र करती है कि पूरा मोहल्ला फिक्र करता है ना? नगर पालिका पंचायत का पानी ना आवे एक दिन दो दिन तो मस्जिदवार जमात फिक्र करती है, पूरा मोहल्ला फिक्र करता है। मोहल्ले में गटर लाइन ब्रेक हो जावे, टूट जावे और रास्ते पर गंदा नापाक पानी बहने लगे तो मस्जिदवार जमात की जिम्मे है इसका कि पूरे मोहल्ले के जिम्मे है? और बताओ, पूरे मोहल्ले के दीन की मेहनत की जिम्मेदारी भी सब पर है। ये सोच के साथ हमारी पूरी मस्जिदवार जमात उस दिन ये सोच बनावे कि भाई सबको गश्त पे लाना है। इस दिन किसी का फोन भी आ जाएगा ना, किसी काम से आपके पास मोहल्ले के आदमी का, तो आप इससे उसकी जरूरत की बात करने के बाद क्या कहेंगे? अनिप भाई आज गश्त दिवस है, आज मगरिब में तमें आवी जजो, अल्लाह तुमने जजाय खैर आपे। चलने फिरते मुसलमानों से भी क्या कहें? भाई आज गश्त से वेला आवी जजो, आज गश्त से वेला आवी जजो। हालांकि इसका एक दिन तबलीग में नहीं लगा है, लेकिन दावत उमूमी तौर पर चलाएंगे। हमारे साथी मगरिब की 15-20 मिनट पहले मस्जिद के अंदर आ जाए, सबसे अच्छी शक्ल यह है। और आने के बाद अपना ऐलान, गश्त के फजाइल, मगरिब के बाद की बात, इशा के बाद की बात, ये सारे उमूर उस वक्त तय करें, ऐलान करे हमारा साथी, पूरा ऐलान करे। गश्त का दीन है, याद दिलावे भाइयों आज मोहल्ले में गश्त का दीन है, अल्लाह रसूल की दीन की मेहनत का अमल होगा। सारे भाइयों की जरूरत है, सारे भाई इसके लिए क्या करें? जुड़े, मेहनत में साथ दे हमारा। ऐलान के कोई फिक्स लफ्ज नहीं है हमारे यहाँ, ऐलान के फिक्स लफ्ज नहीं है। आप इस तरह बात करें मोहल्ले वालों से कि सब समझे भाई આ 12-15 માણસનું કામ નથી, આ બધાનું કામ છે, બધાએ બેસવું જોઈએ અને બધાએ ભેગા મળીને આ કામ કરવું જોઈએ। जिसके जिम्मे फजाइल गश्त है वो साथी गश्त की अहमियत, जरूरत, फजाइल बयान करें और जमातें बनावे, फिर आदाब समझावे और मोहल्ले के अंदर मेरे भाइयों कम से कम क्या है बोलो 10 आदमी की जमात बने। कहीं अपार्टमेंट में, फ्लैटों में या कोई कानूनी मजबूरी है तो ठीक है 3-5 की जमात बने। कोई कानूनी मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है तो हमारी जमातें कितने की बननी चाहिए बोलो? 10 की बननी चाहिए, है ना। और इसमें सारे वहीं से दुआ करें या बाहर निकल कर दुआ करके अजान तक हमारा गश्त का अमल चले। साथी आने के बाद मेरे भाइयों दुआओं के अंदर लगे, हर दावत की बात दुआ कबूल होती है ना। इधर उधर बाहर वक्फे पर, बोतले पर, गुटके, मसाला, बीड़ियां, ईरान तुरान वाहिद, इसमें इन घड़ियों को जाये न करें। हाँ, इशा की नमाज में सुन्नतें फैल कर पड़े, पूरे मजमे को जोड़कर बैठे, पूरे मजमे को हमारा मजमा जोड़े और बात करने वाला 20-25 मिनट, आध घंटा 6 नंबर की बात करके चिल्ले 4 महीने की तश्कील हल्की फुल्की करें, 3 दिन की दबा कर तश्कील करें, आखिर में 5 अमाल की तश्कील करें। जो जिस अमल के लिए तैयार हो उसका नाम लिखे और दूसरे दिन उस अमल के लिए उसको क्या करे बोलो? वसूल करने की तरतीब बनाओ। दूसरा गश्त ऐसी जगह पर करें जहां मस्जिद और जमात नहीं है, मस्जिद भी नहीं है और क्या बोलो मस्जिद और जमात भी नहीं है। दूसरा गश्त तो नए इलाके में काम उठाने के लिए है। किसके लिए है बोलो? नए इलाकों में काम उठाने के लिए है। हाँ, 8 हफ्ते 10 हफ्ते, कितना बोलो? 8 हफ्ते 10 हफ्ते पहले मर्तबा गश्त करने जावे, हम गश्त करें, वहां के लोगों को मुतवज्जे करें। दूसरे हफ्ते जावे, इनमें से किसी को रहबर बनाओ। तीसरे हफ्ते जावे, इनमें से किसी को मुतकल्लिम बनाओ। जरूरत पड़े अपनी मस्जिद की 2.5 घंटे की 1-2 जोड़ियां वहां गश्त के दिन के अलावा मुलाकातों के अंदर भेजें और जरूरत है तो रोज एक जोड़ी के लिए दूसरे गश्त की जगह तय कर दें। घेर कर लोगों ने मरो, नई जगह अपना कपड़ा, अपना प्लास्टिक, अपनी चटाई लेकर जाओ और वहां पर क्या करें? लोगों को जोड़े। हम लोग 2002 के फसादात के बाद हमारे आनंद के अंदर नई नई सोसाइटियां बनने लगी।
तो सब अक्सर 90% गैर मानूस मजमा आकर बसने लगा। तो दूसरे गश्त के लिए हमने मस्जिदें बंद कर दी, भाई इनके यहाँ गश्त करना है, किसी को समझा बुझा कर तैयार कर देते, वो अपने घर की छत दे देता और साथियों से कहते देखो ऐसा वुजू करके आई हो मजबूत जो इशा तक न टूटे। कि किसी छोटे 12 बाई 40 के मकान, अब कहा अंदर बाथरूम है, औरतों को क्रॉस करके तुम वुजू करने जाओगे, मस्जिद मदरसा कुछ है नहीं। बात जगह ऐसी होती इनकी कॉमन, वहां छप्पर डाल देते। अभी याद हमको कि छप्पर में बारिश के जमाने में प्लास्टिक की सफेद सारी गीली हो जाती, तो भी हम गीले पर बैठते, गीले पर गश्त करते, गीले में नमाज पढ़ते, लोगों को जोड़ते। आज अल्लाह की वजह से इन तमाम दूसरे गश्त की जगहों पर तकरीबन 25 जगहों पर मस्जिदें बन गई, मस्जिद और जमातें बन गई, वहां चिल्ले 4 महीने और बैरून की जमातें बनने लगी। ये दूसरे गश्त की बरकत से काम उठाना है। क्या करना है बोलो? काम उठाना है। और 6-8 हफ्ते 10 हफ्ते के बाद बदलो। एक जगह को 10 महीने तक 12 महीने तक 1.5 साल तक पकड़े रखे हैं, हजू उठी नहीं कि हमें उभा थी जाए, कंप्लीट तैयार थी जाए, ત્યાર પછી આપણે મશાલા લાઈ બદલી નાખ્યું। હમણાં બધા અમારાથી માનુસ થયેલા છે, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि पहली मर्तबा दूसरे गश्त के लिए हमारे 18-20 आदमी जाते थे, अब बारी बरसों तक इस तरह जाते रहे, साथी उगता गए, अब कितने रह गए? 4 जने रह गए। क्या रह गए बोलो? दूसरे गश्त करने वाले कितने रह गए? क्यों? तबीयतों में उकताहट होती है। एक ही जगह पर लंबी मुद्दत तक दूसरा गश्त करने की वजह से तबीयतों में मलल उकताहट पैदा होने की वजह से साथी शिरकत करना छोड़ देते हैं। जगह 8-10 हफ्ते के बाद बदलो। कुल्लु जदीदिन लजीज, हर नई चीज लज्जतदार होती है। जगह बदलोगे नई नई जगहों पर, साथियों में क्या पैदा होगा बोलो? उत्साह पैदा होगा। दूर दूर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, कल आपने देखा जोन की कारगुजारी में कैसी बस्तियां हैं, कैसी मस्जिदें हैं, कैसे इलाके हैं। इन इलाकों के अंदर हमारा दूसरा गश्त जिंदा हो, इसके जरिए से क्या काबू में आएगा बोलो? इन नई नई जगहों पर अदान, नमाज, मस्जिद और जमात, तालीम, सारा माहौल बनेगा, सारा माहौल बनेगा। हमारे इन इलाके में जो इलाके बंजर अब आबाद हुए हैं, वो दूसरे गश्त के जरिए से आबाद हुए हैं, वरना पहले ये बंजर था, ये बंजर था। बल्कि मैं क्या बताऊं कि 30, 40, 50 साल पहले ये सारा हमारा गुजरात में वो चंद मारूफ इलाकों के अंदर तबलीग का काम था। जिलों के जिले बंजर थे, हमारे जिले के जिले बंजर थे। लेकिन ये गश्त की बरकत से क्या हुआ बोलो? हाँ, तबलीग का कमाल यह है, तबलीग का बुनियादी और मजबूत कोई जो अमल है ना, जिसके अंदर मेरे दोस्तों भाइयों किसी भी तख्ता पलटने की ताकत है, वो गश्त का अमल है। बयानों से तबलीग, बयानों से दिन जिंदा नहीं होता है, बयानों से दिन जिंदा नहीं होता है, गश्तों से दिन जिंदा होता है। हाँ, पैगंबरों ने गश्त किए हैं। हाँ, पैगंबरों ने क्या किया बोलो? चले हैं, फिरे हैं, लोगों के पास गए हैं, लोगों के पास जाकर इनको मेरे दोस्तों भाइयों समझाना, ये हमारी खुद की जरूरत है। इसलिए हमारा पहला दूसरा गश्त, पहला गश्त दूसरा गश्त, ये दोनों मिलाकर एक अमल है। घर की तालीम, मस्जिद की तालीम, दोनों मिलाकर एक अमल है। दो में से कोई एक छूट रही है तो यह अधूरा अमल है। एक गश्त है दूसरा गश्त नहीं है, मैं नहीं जाता तो मेरा अमल अधूरा अमल है। दोनों गश्त हैं तो मेरा अमल पूरा अमल है। इसलिए हम अपने अमल को पूरा करते हुए दोनों गश्त के लिए क्या करें बोलो? वक्फ फारिग करके अपने साथियों को इसके लिए आमदा करें, तैयार करें। गश्त में कोताही न बरतें। मेरा गश्त है, मंगल का दिन है, तो मुझे सुबह से फिक्रमंद रहना चाहिए। ये नहीं कि मस्जिद में जमात गश्त के लिए निकल गई, ईशा की अजान में आध पौना घंटा आया और मैं आकर बैठ गया दरमियानी बात के अंदर। भाई चलती गाड़ी में बैठने का सबको शौक होता है, चलती गाड़ी में नहीं बैठना है। शुरू से अमल में शिरकत करें। क्या करें बोलो? शुरू से, ताकि इसके जरिए से अमल का पूरा फायदा और उस अमल की पूरी खैर हम सबको नसीब हो। और दूसरे गश्त के जरिए से नई नई जगहों को उठावें। कोई मस्जिद ऐसी है जिसने दूसरे गश्त के जरिए से पिछले 6 महीने के अंदर कोई नई जगह उठाई हो? क्या 8 हफ्ते 10 हफ्ते बाद ना लोग मस्जिद की कदर नहीं करेंगे, समझे ना? पहले इतनी मेहनत करो दूसरे गश्त के रास्ते से कि लोगों में तलब पैदा हो जावे कि भाई हमारो कोई ठिकाणु बनाओ यार, नमाज पढ़ी हमें लोग को कहाँ होती, लोग को ना घर उठला कसीसु हमें कई जगह बनाओ हमारी, कहीं नमाज पढ़वी जाए हमारे। इनमें तलब पैदा हो फिर मस्जिद बनाओगे, है ना? चाहे वो छप्पर की कच्ची बने, लोग इसकी कदर करेंगे, आबाद करेंगे।
बगैर तलब के कोई चीज बना दी, लोग कदर भी नहीं करेंगे, आबाद भी नहीं करेंगे, चंद सालों के बाद वो मस्जिदें वैरान हो जाएंगी। कोई बनाता है तो भी इसको समझाओ कि उबारो भाई, शांति रखो, पहले ये माहौल बनवा दो, लोगों में तलब पैदा થવા દો। આ તો કોઈ થોડી પોતાના સ્ટેટસની વસ્તુ છે કે અમારે ત્યાં મસ્જિદ છે, બન્યા પછી એનો હક છે અલ્લાહના ઘરનો, એને આબાદ કરવાની જવાબદારી એ મોહલ્લાના લોકોને થાય છે। એ લોકો પોતે ફિકરમંદ નહીં થાય, નમાઝ નહીં પढ़े તો આ મસ્જિદ દુઆની જગ્યા બધું આ લોકોને આપશે। इसलिए दूसरे गज की बुनियाद ये है, मेहनत करके वहां काम उठाओ, नमाज, तालीम, और लोग खुरूज करने वाले बने। जब लोगों के अंदर तलब पैदा हो जाएगी ना, तो वो खुद इंशाल्लाह अपनी कच्ची पक्की मस्जिद बना लेंगे, आपको दौड़ धाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, हमारे यहाँ LNT का एक प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पानोली और रविद्रा के GIDC में नहीं, ये पानोली रविद्रा के बीच में। हाँ, क्या घर की मुलाकातों में हर मुसलमान की 3 दिन की तस्कीर हो। जिस मस्जिद में जमातों को लेकर चलने वालों की जोड़ियां बनी बनाई हुई होती है ना, तो शुरू में जैसे समझाया, भाई साहब तकलीफ है, बहुत जोरदार लगी है, थोड़ा नहीं समझा सकते, मेनू में बैठे हैं, मैं शुगर वाला आदमी हूँ, प्रोस्टेट वाला आदमी हूँ, मैं सब्र करके बैठा हूँ। जिस मस्जिद की जोड़ियां माशाल्लाह मुतहर्रिक रहती है, मस्जिद और जमात, हर हफ्ते उस मस्जिद के अंदर माशाल्लाह जमात बनती रहती है। घर घर की मुलाकातों में 3 दिन की तश्कील हो, और ये तश्कील के मौके पर हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि समझाया जावे, भाई 3 दिन की जमात जुमा के दिन जाएगी या जिस दिन जाएगी, आप फजर में तैयार होकर आ जाओ। आप क्या करें बोलो, फजर में तैयार होकर आ जाओ। जिसकी भी तश्कील हो, दावत किसकी चले बोलो, फजर में तैयार होकर आने की, बिस्तर के साथ, कि फिर घर में जाना है, पूरे तैयार होकर अपने आप को लेकर आ जाओ। हमारे एक मस्जिद है, वो हमारे एक साथी इसके अंदर अपनी पाबंदी से 3 दिन लगा दी। इसकी पूरी मस्जिद जो है ना, इसकी जमात 14-15 आदमी को वसूल करके वो रात में घर घर घुमा रहता है, कहता है भाई फजर में बिस्तर लेना आइए जाओ, तो उसकी पूरी जमात 14 की 15 की फजर में बिस्तर लेकर आ जाती है। मस्जिद और जमात में वही रवानगी की बातें होती हैं, घंटा सवा घंटा रवानगी की बात होती है, क्योंकि फेरी वाला तबका हमारे यहाँ सब इको रखते हैं, मारुति वान रखते हैं, उसी वान के अंदर 2 वान में 2 इको में जमात को बिठाया और बस्ती में चले जाते हैं। बाद मरतबा वो बस्ती के अंदर इतने जल्दी पहुंचते हैं कि उस मस्जिद के इशराक पढ़कर निकलने वाले लोग भी बाहर नहीं निकले होते हैं और ये जमात पहुंच जाती है। एक मरतबा रमजान में फजर की नमाज के बाद फौरन इनकी रवानगी की बात हुई, सहरी जल्दी होती है, अरे वो फजर जल्दी होती है, जमात वसूल होकर आ गई, रवानगी की बात हो गई और फौरन ये लोग निकले। कोई दूर ज्यादा रूट नहीं था, पहुंच गए 8-10 किलोमीटर, तो वहां देखा मस्जिद के अंदर 8-10 आदमी बैठे हुए इशराक के अंदर। वो वेला भी गया था, मैं के आटली वेली कोई जमात नहीं आती हमारे ત્યાં। मामूल बनावे, ये मौकूफ है इस मजमे पर। देखो ये मजमा, ये तय कर ले मुझे सुबह अपना बिस्तर लेकर आना है, तो 3 दिन की जमात क्या है बोलो बोलो, आसानी के साथ इंशाल्लाह आ जाएगी, समझे ना। हमारा ये जिम्मेदार तबका, ये 8 बजे 9 बजे 10 बजे तमें जाऊं पाछड़ से आऊं, वो जुम्मा वक्त आऊं, तो कभी जमात का निजाम काबू में नहीं आता है। हम लोग अपना थैली अपना बिस्तर लेकर फजर की नमाज के अंदर मस्जिद के अंदर आ जाएंगे, और जो बाकी है लोग इनको मस्जिद और जमात के जरिए वसूल करवा लें। रवानगी की बात घंटा सवा घंटा तफसील के साथ हो। नया आदमी पहली मर्तबा रवानगी के अंदर जो सुनता है ना, वो तबलीग क्या है वही समझता है, उसी को तबलीग समझता है। इसलिए फॉर्मेलिटी न करें, पूरी बात समझावें। 2 चीजें बुनियादी तौर पर समझावें। जाने वाली जमात वहां से नकद जमात बनावे, जाने वाली जमात क्या बनाए बोलो, नकद जमात बनावे। और वहां के मेरे दोस्तों भाइयों क्या है, मस्जिद और जमात के बनाने की लाइन से फिक्र मेहनत करें, ताकि जमात के आ जाने के बाद भी वहां पर रोजाना की मुलाकात, गश, सारे अमाल उस मस्जिद के अंदर क्या रहेंगे बोलो, जिंदा रहें, वो बस्ती हरकत में आ जाएगी। तो हमारी 3 दिन की जमातों में नए भी हो पुराने हो, खाली पुराने ना हो, सब पुराने मिलकर चले जाएंगे। बुजुर्ग कहते हैं तरक्की नहीं होगी, साए नए चले जाएंगे, तरबियत नहीं होगी। जमात तो नए पुरानों की मिली जुली होनी चाहिए कि इन नयों की पुरानों के साथ तरबियत हो और पुरानों की नयों के साथ तरक्की हो। जमात ऐसे वक्त में हजरत रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि हमारी 3 दिन की जमात इतने ऐसे वक्त में उस बस्ती के अंदर पहुंचे कि पहले दिन के सारे आमाल को क्या कर सके बोलो, पूरा कर सके। खुशी सी गज, सुबह की 2-2.5 घंटे की तालीमी गज, ये सारे आमाल पहले दिन क्या जमात पूरे कर सके। और ये उसी वक्त काबू में आएगा कि जमात सुबह में वसूल हो जावे, रवानगी हो जावे,
اور جماعت کا نکلنا کیا ہو بولو سویرے جلدی ہو تو انشاءاللہ وقت پر جماعت پہنچے گی اور اپنے 3 دن پورے لگائیں گے. 3 دن میں وہاں 100% ملاقات کی کوشش کریں, 3 دن کی نقد جماعت بنانے کی کوشش کریں, مزیدار اعمال کے جمانے کی کوشش کریں. پیر کے دن ہماری واپسی ہو, جنہوں نے میرے واپسی پر ہماری کارگزاری ہو, بر وقت قابو میں آ سکتی ہیں بہت اچھی بات ہے, اسی وقت کارگزاری ہو جامے ہے نا گھنٹے تک. اس میں ایک ساتھی کو فائدہ پوچھیں کہ بھائی تمہیں 3 دن سے کیا فائدہ ہوا. اب ان کو کیا کرنا یہ سمجھاؤ, فارمولیٹی مت کرو, پوری بات سمجھاؤ, تاکہ ہمارے یہ ساتھی 3 دن لگا کر آئے ہیں, ان کی قربانی ہے, یہ ہمارے مسیح جماعت کے اندر جڑ کر ہمارے کیا بنیں گے ہاتھ اور پیر بنیں گے, معاون مددگار بنیں گے. نیا آدمی بھی عظمت کے ساتھ کیا بنے گا بولو کام کے اندر جڑنے والا بنے گا. کسی ضرورت کی وجہ سے اس وقت میں اگر کارگزاری مشکل ہے تو رات عشاء بعد طے کر لو, دوسرے دن فجر بعد طے کر لو. اچھی بات یہ ہے جس نے روانگی کی ہے وہی کارگزاری کرے, اگر اس کے لیے کوئی مجبوری ہے دوسرا کوئی ساتھی طے ہو جامے. لیکن روانگی اور کارگزاری واپسی یہ چیزیں دونوں اپنی مسجدوں کے اندر بہت اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے. بھائی اس طریقے سے سب کے 3 دن لگتے ہیں, کہاں 1 گھنٹہ روانگی ہوتی بتاؤ تو. جیسے بتایا جا رہا ویسے کریں گے انشاءاللہ. ارے کروں گے اس طریقے سے. دیکھو کام تو کام کے طریقے سے ہوتا ہے, اپنے من چاہے سگوڑ سے نہیں ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے سگوڑیا تبلیغ, ایک کیسی تبلیغ ہوتی بولو, ایک بزرگوں کی تبلیغ ہے قربانی والی, اور ایک تبلیغ ہے سگوڑیا تبلیغ. اس میں میری راحت کی تبلیغ, منے بھاوے ایم کروانو. کیوں کروانو؟ منے بھاوے منے چالے منے بھاوے او کروانو. بھائی سگوڑیا تبلیغ سے زندگی بھر میں کبھی زندگی نہیں بدلتی ہے. کام تو قربانی کا ہے. کام کس کا بولو؟ صحابہ نے اس کو قربانی سے کیا. صحابہ کے پورے مجمع نے قربانی کے ساتھ اس کام کو لیا, اور قربانی کے ساتھ یہ مجمع چلا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچے سے اوپر تک پہنچایا. اس کام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی قربانی سے جیسے بتایا جاتا ہے ویسے کرتا رہے گا, اور قربانی کا جو معیار اس سے مطلوب ہے وہ دیتا رہے گا, تو اللہ اس کی زندگی کے اندر شریعت سنت پر چلنے کے جذبات بنائے گا. ایمان کی وہ حرارت تپیش اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی کہ جس کی وجہ سے مشکل سے مشکل اللہ کا حکم اس کے لیے کیا ہو جائے گا بولو آسان ہو جائے گا. صحابہ کے لیے مشکل سے مشکل بات آسان تھی. ان کو کہا گیا جان اللہ کے لیے دے دو. کیا دے دو؟ جان اللہ کے لیے دے دو. حالانکہ آسان کام نہیں ہے جان دینا. جان ہر ایک کو والی ہوتی ہیں, میری جان مجھے والی, آپ کی جان آپ کو والی ہے نا. ہاں آپ کی جان بچانے کا معاملہ ہوتا ہے تو کسی کو نہیں دیکھتا ہے. آج سے 30 سال پہلے جب بھوپال کے اندر وہ گیس لیک ہوا اور لوگ مرے ہے نا, تو اس کا منظر دیکھنے والوں نے جو پیچھے سے گئے تو ہم کو سنایا کہ یہاں بچے کی لاش ہے, آگے چل کر ماں کی لاش ہے. جب سانس رکنے لگی بچہ گرا تو ماں نے بچے کو بھی چھوڑ دیا. بہت دور نہیں, 2002 کا زلزلہ آیا تو 2 منزلے کے فلیٹ, 3 منزلے اور 5-10 منزلے کی عمارتوں میں مائیں اپنے بچے کو چھوڑ کر نیچے اتر گئی. کیوں؟ جان کا مسئلہ ہے. جان ہر ایک کو والی ہے. یہ جان صحابہ کو دینا آسان ہو گیا. بلکہ وہ تو یوں کہتے تھے بدل میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی. آج اللہ کے نام پر جان دینے کا موقع آیا ہے. ایک ایک جان اللہ کے نام پر میں کھپا دیتا. اس پر رو رہے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے. مشکل بات ہے, آسان ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بنایا. مقصد بنا کر کرتے رہیں, قربانی کے ساتھ کرتے رہیں, اطاعت اور اتباع سے کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی سطح کو بہت اونچے پہنچا دیا. اور کام کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان میں خوبیاں, ان میں صفات, ان میں اچھائیاں کم و بیش سب کی زندگیوں کو بھر دیا. خوبیاں تھی ان کے اندر, اچھائیاں تھی, بھلائیاں تھی. کوئی صحابی ایسے نہیں جن کے پاس مناقب نہ ہو, جن کے فضائل نہ ہو. ہاں خوبیاں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ فرمایا کہ خیر کی 360 خصلتیں ہیں. خیر کی کتنی؟ 360. او بھائیو کتنی خصلتیں ہیں؟ 360. جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس میں ایک خصلت پیدا کر دیتا ہے. اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان 360 میں سے اللہ ایک بات اس کی زندگی کے اندر پیدا کر دیتا ہے. مجلس میں صحابہ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے.
कहने लगे या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत में कोई ऐसा आदमी है जिनमें ये 360 पूरी खसलतें पाई जावें? आपने फरमाया मुझे उम्मीद है मेरी उम्मत में आप ऐसे आदमी हैं जिनमें 360 पूरी पाई जाती है। बात क्या है, साहबा में कुर्बानी देने में सिद्दीक़ अकबर का मेयार सबसे ऊंचा था। कुर्बानी देने में जान की माल की मेयार सबसे ऊंचा था, तो अल्लाह ताला ने इनकी जिंदगी को भी तमाम किस्म की खैर से भर दिया। कुर्बानी जितनी में आप देंगे मेरे दोस्तों भाइयों, उतना अल्लाह मुझ में आप में खैर भर देगा, खसलतें भर देगा। अल्लाह एक खैर दे दे, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे भाइयों, एक खैर, एक अच्छी खसलत पैदा कर दे, मेरे आपके दुनिया आखिरत के बेड़े पार है, जन्नत पक्की है। मेरे दोस्तों भाइयों, मेहनत सारी इसी के लिए करना है, कुर्बानी इसी के लिए देना है। हाँ, इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, हमारे वो साथी जिनको अल्लाह ताला ने इस्तेदाद दे रखी है मुल्कों में जाने की, मुल्कों में पहुंचे, सहाबा इलाकों में चले। मैंने एक किताब में वाकया पढ़ा, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में आपकी भेजी हुई जमात से याजूज माजूज की दीवार पर पहुंच गए। जबान नहीं जानते थे, वहां की जबान नहीं जानते थे, तो तर्जुमान से आपस में वो साहबा की जमात के अमीर ने, वो वहां के बाशिंदा, वहां का जो अमीर था, इसकी अंगूठी के अंदर एक लाल हीरे की अंगूठी देखा, अंगूठी में लाल हीरा। बोले ये तू कहां से लाया, ये तू कहां से लाया? बोले तीन दिन के बाद बताऊंगा। जनाब इसके पास एक बाज परिंदा था, इसने 3 दिन तक इसको भूखा छोड़ा। फिर मुसलमानों की जमात के जिम्मेदार को लेकर याजूज की दीवार पर चढ़ा। उसके हाथ में अपना बाज था और एक हाथ में गोश्त का टुकड़ा था, ताजा गोश्त, ताजा, और उसने इसको दीवार के पीछे डाल दिया याजूज माजूज की तरफ, और परिंदे को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? परिंदे को छोड़ दिया। तो परिंदा गोश्त भूखा था, गोश्त का टुकड़ा, तो वो नीचे जपटा इसको लेने के लिए और उठाकर वापस अपने मालिक के पास आया। उसने उसके हाथ से गोश्त का टुकड़ा ले लिया और इसके नीचे जो कंकर लगे हुए थे इसको साफ करके अपनी मुट्ठी में लिए, गोश्त परिंदे को दे दिया। मुसलमानों की जमात के जिम्मेदार को कंकर दिखाए, वो लाल हीरे थे, ये लाल हीरे इसके नीचे हैं। हजरत उस्मान को खत लिखा उन्होंने वहां से, आप कहे तो पूरा इलाका मेहनत करके ताबे कर देवे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला जवाब दिया कि नहीं, पीछे याजूज माजूज हैं, इनका निकलना तय है जब अल्लाह की तरफ से वक्त आए। बस तुम्हारी ये मेहनत करने की यहां तक इलाकाई हद है, वहां से अपनी जमात को लेकर वापस आ जाओ। कहां तक चले बोलो, कहां तक चले? याजूज माजूज की दीवार तक चले। साहबा की ये जज्बात थे। हजरत उक़बा इब्न आमिर या उक़बा इब्न नाफ़े, हाँ, मराकश को फतह करने के बाद, हाँ, उधर साहिल में वेस्ट इंडीज की तरफ में आपने अपने पानी के अंदर घोड़े को डाला और इनका घोड़ा तैरते तैरते इसके गले तक पानी आ गया घोड़े के। कहने लगे अल्लाह, पता होता इस साहिल के पीछे जमीन है और तेरे बंदे तेरी बंदियां वहां पर बसते हैं, खुदा की कसम मैं अपनी सवारी साथियों को लेकर जमीन के उस इलाके के अंदर पहुंच जाता, तेरे दिन की मेहनत करता मैं। ये जज्बात थे सहाबा के। दुनिया के इलाकों में अल्लाह का दीन जिंदा हो, आदमी जान माल लेकर चलेगा, इसका दीन बनेगा, इलाकों का दीन जिंदा होगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे ये मजमा, हमारा ये मजमा देखो, ये दुनिया की निस्बत पर पूरी दुनिया में पहुंचा हुआ है। कहां पहुंचा हुआ है बोलो? अरे तुम्हारे मर्द तो मर्द, औरतें भी पहुंची हुई हैं। हम लोग मडागास्कर में थे, मरहूम यूसुफ भाई हमारे साथ थे, राजेरी कटोर के। ऐसा हुआ हम रमजान में वहां उतरे 4 बजे, चले थे मॉस्को से, ठंड के इलाके से वसहरी की, और 4 बजे मडागास्कर के अंदर उतरे। इतनी गर्मी के पूछो मत, हमको लेने के लिए कोई नहीं आया था एयरपोर्ट पर जमात को, तो हम परेशान, और लू चलती थी, सबके हालत खुश हो रहे थे। मैंने यूसुफ भाई से कहा, यूसुफ भाई केम करूं आपने? तो कि यार कोई लेवा तो આવ્યું નથી કે કેમ કરું આપણે કે? तो कोई बात हो के अच्छा, वो पूरे एयरपोर्ट में खाली हुए। उस जमाने में एसटीडी थी, मोबाइल का जमाना नहीं था, एसटीडी वाला खुला था, इस लालच में कि इनको कोई फोन करना हो तो ये फोन करेंगे। मैंने कहा एक काम करो ना तुम, ये डिक्शनरियां आती है ना, उस जमाने में हर डिक्शनरियां मिलती थी फोनों के नंबर की, बड़ी बड़ी होती थी घरों में, इनमें कोई नाम देखो ना मुसलमान का। तो इन्होंने मुसलमान का नाम तलाश किया कि एक नाम से मैं इस पर नंबर लगाऊं, पैसे खर्च हो। हमारे एक साथी ने डॉलर तुड़वाए और कॉल लगाया, वहां सामने एक औरत ने फोन रिसीव किया और अंग्रेजी में बात की कि हमारी जमात इंडिया से आई है,
हम लोग एयरपोर्ट पर खड़े, हमारे पास कोई सवारी नहीं है, आप शहर में से कोई सवारी भेज दो। वो औरत भी अंग्रेजी समझती थी। उसने कहा कि आप लोग इंडिया में कौन सी जगह से आए? तो रकम फ्रॉम गुजरात, हम गुजरात से आए। अच्छा, तो गुजरात में से तुम कहां से आए? तो यूसुफ भाई ने कहा मरूम ने कि कठोर से आए, कठोर से। देखो ऊं भी कठोर नहीं छू। अरे तुम्हारे मर्द तो मर्द बार होते हैं, औरतें भी बार होती हैं। अरे बात समझते हो? इसलिए मुल्कों में जाने का दीन की निस्बत पर मिजाज बनाओ। तैयार हो इसके लिए? अरे इसके लिए तैयार हो? तुम्हारी इंशाल्लाह में भी करंट नहीं है। अरे चाय भी पिए कि नहीं पिए तुम लोगों ने? तो हमारे वो साथी जिनके 2 मरतबा 4 महीने लग चुके हैं, सालाना चिल्ले की पाबंदी है, मकाम पर माशाल्लाह जुड़ते फिरते हैं, इन तमाम भाइयों से गुजारिश है वो 2025 के अंदर अपनी बैरून की तरतीब बनावे और इस नीयत से मजमे के अंदर खड़े हो जावे। 2025 में इंशाल्लाह बैरून में जाना है। हिम्मत करके अपने नामों को पेश करें, खड़े हो जावे।